two-day e-workshop is going to be very productive, enlightening, and stimulating, and it will certainly help you to gain skills and knowledge required to be effective in your work life. The two-day e-workshop on skill development for effective volunteering is the result of collaborative effort with Gandhi Smriti and Darshan Samiti, an institution dedicated to propagate Gandhian thoughts into the lives of people, which works under the Ministry of Culture, Government of India, and Bhagat Phul Singh Mahila Vishwavidyalaya, which is the first women's only state university of North India, established in 2006 in the rural heartland of district Sonipat in the state of Haryana. As we all know that Indian culture and tradition, volunteering is part of the ancestral history. On the grounds of humanity and selfless services, there are many areas in which people can come forward and get involved in volunteering. Practice volunteerism not only increases self-esteem of an individual, it also helps an individual to appreciate one's environment by contributing constructively. Universities and youth can extend their contribution through meaningful dialogue within their communities and create awareness, especially during the crisis situation like the one which we are facing right now. Keeping this as the aim, skills are required to communicate and address in a more meaningful ways. The two-day e-workshop will help participants to become more effective in practicing non-violent expressions and develop skills in such communication through reflective exercises. In these two-day workshop, our distinguished speakers are going to cover the following areas. Day one, that is today, the speakers are going to cover understanding volunteering, nature of volunteering, young people and volunteering, vision and innovation in volunteering, role of communication in volunteering, and online volunteering. And for the second day, it will be covered how to be an effective volunteer, team building and leadership, skills in nonviolent communication, dialogue in the community, media literacy and skills, critical analytical skills, scope for volunteering, and sharing of case studies, which will be followed by a summing up and wrap up with a small reflective exercises. The participants are requested to attend the workshop while ensuring their audio and video on mute mode. They may ask the questions, write comments on the chat box on Google Meet platform, as well as on Facebook live streaming during the e-workshop by disclosing your identity or affiliation. The host will ask questions on your behalf from distinguished speakers, and we will give ample time to address your questions and observations to ensure that the workshop fulfill your aim. We have kept almost close to half an hour for exclusively for the question and answer session. And after the e-workshop, a feedback come assignment will be circulated to all the participants through mail. Only those participants will submit their feedback come assignments form will be given e-certificates. The link will be activated only for 2 days after the end of the program. So I now move forward to call upon Dr. Shefali Nagpal, who is Associate Dean, Student Welfare, and coordinator of the two-day e-workshop, co-director of the e-workshop. Dr. Shefali Nagpal is also director in charge of Human Resource Development Center, which is a faculty training center established under UGC in BPSMV, Bhagat Phul Singh Mahila Vishwavidyalaya. I request ma'am to introduce and welcome Shri Dipankar Shri Gyanji, who is the director of Gandhi Smriti and Darshan Samiti, and also address our participants. जी, Ma'am, may I request you to please take over? Thank you. सभी को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद दीपाली। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारी सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगी हमारी कुलपति प्रोफेसर सुषमा यादव जी का। वो हमें ज्वाइन नहीं कर पाए हैं क्योंकि थोड़ा सा कहीं एंगेज थे, कोई मीटिंग थी। और हमारे बीच में उपस्थित हमारे बड़े आदरणीय श्री दीपांकर श्री ज्ञान जी, जो कि निर्देशक हैं
गांधी स्मृति और दर्शन स्मृति नई दिल्ली में। हमारे डीन स्टूडेंट वेलफेयर प्रोफेसर विजय नेहरा जी, हमारे असिस्टेंट डीन स्टूडेंट वेलफेयर डॉक्टर वरुणा दहिया एंड डॉक्टर दीपाली माथुर, और हमारे बीच में उपस्थित हमारे दो बहुत ही लर्नेड स्पीकर्स और प्रोग्राम ऑफिसर डॉक्टर वेदाभ्यास कुंडू जी और श्री गुलशन गुप्ता जी। सभी हमारे विश्वविद्यालय के उपस्थित सभी फैकल्टी मेंबर्स और गांधी स्मृति और दर्शन स्मृति के से जुड़े हुए यहाँ पर सभी प्रतिभागी और स्टाफ मेंबर्स और इस कार्यक्रम के सभी व्यूअर्स, आप सब लोगों का मैं अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ और धन्यवाद देना चाहूंगी गांधी स्मृति को और दर्शन स्मृति को, जिन्होंने हमें ये मौका दिया इस तरह का 2 दिवसीय कार्यक्रम को आयोजन करने का। और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज जो शख्सियत हमारे साथ इसमें जुड़ी है, जो निर्देशक है गांधी स्मृति और दर्शन स्मृति के, उनको स्वागत करने का मौका मुझे मिल रहा है। औपचारिक तौर पे आप सब लोग उन्हें जानते हैं, हम उनके बारे में बहुत सुना भी है, क्योंकि वो बहुत ही विख्यात एक IAS ऑफिसर रहे हैं और उनके जो योगदान रहे हैं उनको बहुत ही सराहा गया है, जाना गया है। और इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और स्टेट गवर्नमेंट ऑफ झारखंड ने उनको बहुत से उनके कार्य और उनके कर्तव्य निष्ठा के प्रति उनकी इसको पहचान को बनाते हुए बहुत से इस अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है। तो ये हमारे लिए बड़े ही गर्व की बात है। सर, हम आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में, और हम आपका धन्यवाद भी देते हैं कि आपने हमें ये मौका दिया कि हम गांधी स्मृति और दर्शन स्मृति के साथ जुड़कर इस कार्यक्रम को कर पाए। श्री दीपांकर श्री ज्ञान जी जो है वो एक IAS ऑफिसर है और प्रेजेंटली डायरेक्टर है गांधी स्मृति और दर्शन स्मृति के, जो कि एक ऑटोनोमस बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। इस कार्यपद पे आने से पहले वो तकरीबन 22 साल अपने जो कार्यकाल है वो झारखंड स्टेट में बिताकर आए हैं एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, जिसपे उन्होंने कई बहुत सारे कार्यपदों पर उन्होंने काम किया है। आप डिप्टी कलेक्टर भी रहे हैं रांची के अंदर, और OSD भी रहे हैं टू द प्रिंसिपल सेक्रेटरी इन द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिप्टी डायरेक्टर रहे हैं और रीजनल रिप्रेजेंटेटिव और मेंबर कन्वीनर भी रहे हैं कैपार्ट के पटना के अंदर, जो कि एक जहां पर इनको NGO को फंडिंग और मॉनिटरिंग और मैनेजमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट का काम आपने संभाला है, और बहुत सारे NGOs आपके सानिध्य में नए नए आइडियाज और नए नए सोच को लेकर आगे बढ़े भी हैं। आपके इस योगदान के लिए आपको बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जब आप रहे पोस्ट पे रहे हैं एक्स मैजिस्ट्रेट की, तो आपको उससे भी नवाजा गया है। और इतना ही नहीं, अपने अगर आप इनका प्रायर ज्वाइनिंग टू दिस IAS ऑफिसर आप बहुत ही कारगर एक वकील भी रहे हैं, क्योंकि आपने LLB की डिग्री भी ले रखी है, MSc केमिस्ट्री भी है आप, और आपने प्रैक्टिस भी किया है लॉ को, लीगल सर्विसेज में योगदान भी दिया है अपना इन पटना हाई कोर्ट के अंदर भी 4.5 साल का टेन्योर आपने वहां पर भी बिताया है। और आप हमेशा विख्यात रहे हैं नई सोच के लिए, नई ऊर्जा के लिए, नए आयाम को स्थापित करने के लिए, नए नए प्रयोग आप अपने इस सारे कार्यकाल में करते रहे हैं, और बहुत ही सजग और हर चीज के अंदर अपडेटेड रहना, जो विश्व भर में चल रहा है, जो दुनिया भर में चल रहा है, उसके प्रति आपकी सजगता, आपकी कार्यनिष्ठा के अंदर, आपके कर्तव्यों के अंदर सभी को देखने को मिलती है, और आपसे सब लोग प्रेरणा भी लेते रहे हैं। ऐसे मैंने आपके व्यूज बहुत सारे सर इंटरनेट पे पढ़े हैं, तो आपसे मिलकर आपको यहाँ पर आपकी उपस्थिति हम सब लोगों को प्रेरणा देगी। हम सब लोग इस आपके सानिध्य में मुझे ऐसा लगता है कि और भी कार्यक्रम कर पाएंगे, और मैं आपका इस सत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और इतना ही नहीं, अभी 2016 में ही गांधी विनोबा पीस अवार्ड से भी आपको सम्मानित किया गया है सर। ये हम सब लोगों के लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आज आप थोड़ा सा समय निकालकर हम लोगों के साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। हम जानते हैं बहुत सारा आपका बिजी शेड्यूल है, पर फिर भी आप हमारे साथ आए हैं आशीष वचन के लिए। हम सब आपको यहाँ पर आमंत्रित करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। सभी को नमस्कार।
सबसे पहले मैं आपकी वाइस चांसलर मैडम सुषमा यादव जी को धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने हमें यह अवसर दिया कि हम ये कार्यक्रम आपके साथ जुड़कर कर सकें। प्रोफेसर दीपाली जी, शेफाली जी और विजय मेहरा जी, आप इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने इस पूरे कार्यक्रम की जो रूपरेखा बनाई और पूरे कार्यक्रम को जिस मुकाम तक पहुंचाने की कोशिश की है वो रियली बहुत सराहनीय है, क्योंकि किसी भी ई वर्कशॉप में 80 से ज्यादा लोगों का जुड़ना अपने आप में एक अच्छी बात मानी जाती है। साथ में ये भी माना जाता है कि वर्कशॉप के लिए लोगों का रुझान भी है। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले एक क्लैरिफिकेशन करना चाहता हूं कि मैं भारतीय प्रशासनिक सेवा का पदाधिकारी नहीं हूं, मैं राज्य प्रशासनिक सेवा का पदाधिकारी हूं और अभी झारखंड में सीनियर पद जो हैं एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उस पर पदस्थापित हूं और डेपुटेशन पर यहाँ काम कर रहा हूं। जो विषय हम लोगों ने आपके साथ मिलकर चुना है वो विषय है वॉलंटियरिंग और उसके स्किल को कैसे डेवलप किया जाए। मुझको लगता है कि ये विषय आज बहुत ज्यादा प्रासंगिक इस संबंध में है कि कोविड जैसी पैंडेमिक जो महामारी पूरी दुनिया को तंग तबाह कर रही है, उस महामारी में इस विद्या की आवश्यकता मुझको लगता है कि एक बहुत ज्यादा है और लोगों को उसको समझने की आवश्यकता है। ये समझने की आवश्यकता है कि वॉलंटियर कहते किसको हैं। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल अगर आपके साथ शेयर करूं कि सपोज करें आप कहीं जा रहे हो, रास्ते में एक एक्सीडेंट होती है, एक व्यक्ति को चोट लगती है, भीड़ जमा होती है और भीड़ में सब लोग बस इतना ही मूक दर्शक की तरह देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। तभी उस भीड़ से एक व्यक्ति निकलता है, वह लोगों को डायरेक्शन देता है कि भाई आप इधर आओ, इनका हाथ पकड़ो, इनका पैर पकड़ो, ये 3 व्हीलर को रोको, इनको बैठाओ, और एक व्यक्ति को कहता है कि आप इसमें बैठकर इनके साथ हॉस्पिटल जाओ। फिर हॉस्पिटल पहुंचकर अगर उस व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम होती है तो उसी व्यक्ति को कांटेक्ट करता है और व्यक्ति हॉस्पिटल भी आता है, डॉक्टर से बात करता है और उस व्यक्ति की जान बचाने की कोशिश करता है। अगर इस पूरे प्रकरण को समझा जाए तो इसमें वॉलंटियरिंग कौन कौन से लोग कर रहे हैं, ये शायद मुझको लगता है ज्यादा समझ में आएगी। वो व्यक्ति जो उस भीड़ से निकलकर इस पूरे घटना को कर रहा है वो तो खुद ही बड़ा वॉलंटियर है, क्योंकि उससे किसी ने इस काम को करने को कहा नहीं, किसी व्यक्ति ने उसको प्रेरित नहीं किया कि आप इस एक्सीडेंट में इस तरह का काम करो, लेकिन उसने स्वयं से अपनी अंतर प्रेरणा से इस कार्य को किया है। तो यह वॉलंटियर्स का बहुत ही सटीक उदाहरण है। उस व्यक्ति ने इस कार्य के लिए अपने को वॉलंटियर किया। दूसरा वो व्यक्ति भी वॉलंटियर है जिस व्यक्ति ने उस पीड़ित व्यक्ति को जो हॉस्पिटल ले गया, या वह 3 व्हीलर ड्राइवर भी वॉलंटियर है जिसने खुशी खुशी उस व्यक्ति को हॉस्पिटल ले जाना स्वीकार किया है। वॉलंटियर में एक आपके अंतःकरण की अवस्था है जिसमें आप स्वयं को समर्पित करते हैं किसी काम के लिए। यह तभी संभव है जब आपके अंतःकरण में 2-3 चीजें हों। पहली चीज तो यह हो कि आपके अंतःकरण में एम्पैथी, आप समझते हो। हेलो जी सर, जी सर, जी जी। सर आपको हमारी आवाज आ रही है? एक्चुअली मैम सर का संपर्क इसलिए टूट गया, उनके पास फोन आ रहा था। अच्छा, तो कोई नहीं, अभी वो जुड़ जाएंगे दोबारा सर हमसे। ओके ओके। बेटा सर, गुलशन जी। पंकज जी यस सर। पंकज सर का भी एक्चुअली फोन आ गया था तो उससे डिस्कनेक्ट हो गए सर। ओके ओके सर जुड़ गए वापस, जुड़ गए ओके सर वापस आ गए सर। आई एम रियली सॉरी।
ई वर्कशॉप की जो सबसे माइनस पॉइंट है वो यही है कि आप जिस ऑपरेटर्स के साथ काम करते हो, ऑपरेटर्स बहुत सारी चीजों में उपयोग होती है और वो ऑपरेटर्स आपको हमेशा डिस्कनेक्ट करती रहती है, और वो डिपेंडेंट भी है इंटरनेट पर, कभी वो इंटरनेट भी डिस्कनेक्ट करती है। तो मैं ये कह रहा था कि वॉलंटियरिंग जो है सो वो एम्पैथी से गाइडेड है। जब तक आप में एम्पैथी का वो अंश ना होगा तब तक आप वॉलंटियर्स के लिए तैयार नहीं हो सकेंगे। जैसे आज की परिस्थिति में बात करूं कि अगर कोविड चल रही है, बहुत सारे लोगों ने प्लाज्मा डोनेट किया है जो कोविड पेशेंट रहे हैं। ये प्लाज्मा डोनेशन भी वॉलंटियरिज्म है। इसी तरह बहुत सारे लोग ब्लड डोनेशन करते हैं, वो भी वॉलंटियरिज्म का काम है। किसी भी काम को करने में जब आप समर्पित ढंग से उस काम को करते हैं और इस उद्देश्य के साथ करते हैं कि इस काम को करने से आपको उससे कोई प्रतिफल प्राप्त नहीं होना है, तो ऐसे सारे कार्य उस श्रेणी में माने जाते हैं जो वॉलंटियरिज्म की श्रेणी है। जैसे आज मैं बात करूं तो आप दीपाली जी हों, शेफाली जी हों या विजय मेहरा जी हों, इस कार्यक्रम के लिए आपने अपने आप को वॉलंटियर किया है। इस कार्यक्रम को बनाने के लिए, इसे लोगों तक जोड़ने के लिए, इसकी संख्या अधिक से अधिक हो, अधिक से अधिक लोगों तक ये बात जाए। जैसा अभी मैडम आप बता रही थी कि आपने असाइनमेंट्स भी आप देंगी, फिर उसको इवैल्यूएट करेंगे और तब ई सर्टिफिकेट तक जाएंगे। मतलब आपने पूरे प्लान को बनाया है और स्वयं बनाया है। इसका प्रतिफल कहीं मिलना नहीं। इसका प्रतिफल बस इतना ही है कि आपको आपके अंतःकरण में यह संतुष्टि होगी कि आपने इस काम को बखूबी निभाया है। इस वॉलंटियरिंग को करने में कम्युनिकेशन भी आएगी, इस वॉलंटियरिंग को करने में एम्पैथी भी आएगी, इसका प्रेरणा जो है वो भी सामने आएगी। इन सभी चीजों के मिश्रण से यह जो वॉलंटियरिज्म है वो खुद ब खुद सामने आएगी। ये जो प्रेरणा आती है वो आती कहां से? प्रश्न यह है। यह प्रेरणा व्यक्ति को अपने एक्सपीरियंस से, अपने संस्कारों से आती है। जब वो व्यक्ति उस चीजों से जुड़ता है तो कुछ तो ऐसे हैं जो उसने बचपन से देखे होंगे, कुछ ऐसे संस्कार हैं जो उन्हें अपने परिवार, अपने माता पिता से मिले होंगे, और कुछ ऐसे हैं जो उसने एक्वायर किए होंगे। तो जो अभी आपको आज से कल तक में जो एक्सपर्ट्स बताएंगे वो वैसे टूल्स बताए जाएंगे जो आप एक्वायर करेंगे, जो आपने अपने संस्कारों से प्राप्त किए हैं, वो इनहेरेंट हैं आपके। इनहेरेंट गुण जब टूल्स के साथ मिलेगी तो एक सफल वॉलंटियरिज्म में कन्वर्ट होगी। और ऐसे स्थिति में आप जब इन दोनों का मिश्रण प्राप्त करेंगे तो एक सफल वॉलंटियर होंगे। अब प्रश्न उठता है, बहुत सारे के मन में उठ भी रहा होगा कि मैं वॉलंटियर बनूं तो क्यों? आखिर जब आपने कह दिया कि इसका प्रतिफल कुछ मिलना नहीं, प्रतिफल की आशा रखनी नहीं, केवल काम करना है, तो मैं क्यों करूं? इसका करने के पीछे जो मूल उद्देश्य होता है वह उद्देश्य स्वांत सुखाय होता है। खुद के अंदर उस चीज का के सुख की अनुभूति, यही उसका मूल उद्देश्य है। अगर आपको आपके कार्य की अनुभूति सुखद हो रही है तो आप यह मान लेना कि आप इस काम में सफल हो। और रिकॉग्निशन उस काम का कोई जरूरी नहीं है कि आपके एक दिन के प्रयास में आ जाए और एक ही वॉलंटियरिज्म में आपने जाकर प्लाज्मा डोनेशन कर दिया एंड यू आर रिकॉग्नाइज्ड। ऐसा नहीं, यह सतत प्रक्रिया है और प्रक्रिया इतनी अच्छी है कि समाज उसे स्वीकार करता है और समाज उसकी पहचान समाज में एस्टैब्लिश होती है और खुद ब खुद आप लोगों के बीच एक एस्टैब्लिश स्टार बनते हो। इसके मुझको लगता है कि ये 2 दिन की जो कार्यशाला होगी, रफली 5 घंटे के आसपास या 6 घंटे के आसपास की कार्यशाला है, इस कार्यशाला में जो मेरी दृष्टि में सबसे मुख्य बिंदु होगा वह अंतिम सेशन होगा, जबकि आप इसके प्रैक्टिस को करेंगे। प्रैक्टिकल पॉइंट्स आपसे डिस्कस किए जाएंगे और वो आप
करना, जब आप उसे करोगे या उसे जियोगे, तब आपको यह अंदाज होगा कि जो आपको टूल्स बताए गए या जो आपको आपके रिसोर्स पर्सन ने बताया है वो कितना कारगर या कितना अच्छा है। महात्मा गांधी के विषय में अगर कहूं तो जीवन पर्यंत वॉलंटियर रहे। उन्होंने स्वयं से बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिस काम की अपेक्षा हम और आप दूसरों से करते हैं। अपेक्षाएं दूसरों से बहुत आसान है, लेकिन स्वयं से अपनी अपेक्षाओं की पूर्ति यह एक मुश्किल कार्य है। इसलिए सबसे जरूरी यह है कि अगर मुझको अपेक्षाएं हैं तो सबसे पहले खुद से होनी चाहिए, और खुद की अपेक्षाएं जब मैं खुद करने में सक्षम हूं तो मुझे जो सुख मिलेगा, जो मुझे संतोष मिलेगा, वो वही मेरा पारितोषिक है, वही मेरा परिणाम है। अगर ऐसी कभी कोई परिस्थिति आपके समक्ष आए तो आप जरूर इस बात का ख्याल रखना कि आप जिस काम को करने जा रहे हो उस काम से आपको कितना अंतर सुख मिलता है, आपको कितना अपने काम का सेटिस्फैक्शन मिलता है। अगर वो सेटिस्फैक्शन आपको अपने काम का है तो मेरी दृष्टि में आप अपने कार्य के प्रति सफल हो, और आपने जो स्वयं से काम किया जिसमें आपने परिणाम की अभिलाषा नहीं रखी है, तो ऐसा काम आपने वॉलंटरी किया है और आप एक सफल वॉलंटियर हो। मैं इस पूरे ई वर्कशॉप को मानता हूं कि यह 2 दिनों में एक सफल ई वर्कशॉप होगा। जितने लोग मित्रगण इससे जुड़े हैं वो सारे मित्रगण कहीं ना कहीं अपने जीवन में इस तरह का काम कर चुके हैं। उनकी आकांक्षाएं इस तरह के काम करने की है और शायद वो करते भी आते हैं। बस उन्हें कुछ टूल्स चाहिए ताकि वो अपने काम को और निखार दे सके, और यह 2 दिन का वर्कशॉप उनको टूल देने में सफल होगा। इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आपने आपके जो वर्ड्स थे वो बहुत ही एनकरेजिंग थे हम सभी के लिए, और जिस तरीके से आपने वॉलंटियरिज्म को परिभाषित किया है हम सभी के लिए वो एक बहुत ही एक बड़ा आई ओपनर है कि जो लोग वॉलंटियरिज्म करना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी हम ऐसे टूल्स अवेलेबल हैं, ऐसी ट्रेनिंग अवेलेबल है जिससे वो अपना काम ज़्यादा इफ़ेक्टिवली कर सकें। और बहुत ही इनकरेजिंग आपका स्पीच रहा। थैंक यू सो मच सर। और अब मैं इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाती हूँ, एंड बिफोर आई मूव ऑन फर्दर मैं सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप अपने अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन से जुड़े हुए हैं तो कृपया आप अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन को टच ना करें, और कोशिश ये करें कि आप अपना स्क्रीन शेयर ना करें, क्योंकि आने वाले इस प्रोग्राम में जो स्पीकर्स की प्रेजेंटेशंस होंगी उसमें उन्हें अपना स्क्रीन शेयर करना होगा, तो कृपया इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखें। So now moving forward, I now request Dr. Varuna Dhaiya, the convener of the program, to formally welcome our distinguished speakers, Dr. Vedabhyas Gyanji and Mr. Gulshan Gupta ji. मैम आपने अनम्यूट करिए अपने आप को, आपकी आवाज नहीं आ रही है। Thank you, Dr. Dipali. It gives me an immense pleasure to be part of this event, and I really feel honored to welcome our first resource person, Dr. Vedabhyas Kunduji, who is the program officer of Gandhi Smriti and Darshan Smriti. He has done extensive work and research in non-violent communication, peace and conflict resolution, media and information literacy. He has been involved in various volunteer promotion and research in volunteering. He has been conducting workshops on these areas for judicial officers, for civil servants, for teachers, police, students, and youth all over the country. He
He has also written extensively in these areas of expertise. Before Gandhi Smriti, he was the Volunteer Promotion Officer in the United Nations Volunteers. Welcome, Dr. Veda Vyas Kunduji. Now, I would like to welcome our next eminent scholar, Mr. Gulshan Gupta ji, who is a Northeast coordinator, Gandhi Smriti and Darshan Smriti, New Delhi. And he is a PhD research scholar. He has done his PhD from IP University, Delhi. He is a social entrepreneur, life skill trainer, and an influential speaker. He's trained a number of young people in following subjects like all across the country on the topics like volunteerism, mutual coexistence, and peace and non-violence, communication skills, media literacy, culture and spirituality, life skills, and self-empowerment. He has been working in Northeast India for last 11 years and contributing towards promotion of cultural identity. Welcome, sir. Now, the whole, the workshop, I request to conduct this workshop. Therefore, I request Dr. Veda Vyas Kunduji to begin and to formally start this workshop. Dr. Veda Vyas Kunduji, all over to you, sir. Dr. Veda Vyas ji. Hello, am I audible, please? Yes, sir, you're audible. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir, you're Hello. audible. You can start your Hello. presentation. Sir, you are audible, sir. Can anyone hear me? Yes, sir. Yes, sir. Hello. हेलो पंकज जी, हेलो दीपाली जी, जी सर, Hello. आप 2 मिनट के लिए प्लीज बात करिए. मैं वेदा सर का माइक शायद ऑफ Actually, I'm not able to hear okay, anything. sir. Pankaj, can you hear जी, me? sir. I'm not able to hear anything. सर आप रिजॉइन करिए सर एक बार, Hello. फिर दोबारा से आप ज्वाइन कर दीजिए सर एक बार. Hello. I can, Sir, let me call. Hello. Hello. जी सर, you are audible, sir. Okay. There seems to be some technical problem. Yes, sir. Yes. I So I request think- all the participants to please mute your video. Sir, over to you. Okay. Actually, वेदा सर एक रिक्वेस्ट है सर, अगर आपको कुछ इश्यू आ रहा है तो आप अपना वीडियो ऑफ कर सकते हैं सर. वीडियो आप ऑफ कर सकते हैं सर अपना आप, क्योंकि वहां पर नेटवर्क इश्यू आ रहा है सर. आप अपना वीडियो ऑफ कर सकते हैं सर. okay. I'm okay. यस सर. हेलो वेदा सर. Yeah, Pankaj. So now यस सर. यस सर. मैंने वीडियो ऑफ कर दिया है and I'm going to. यस सर. यस सर. यस सर. यस सर. यस सर. यस सर. Because there seems to be a lot of problem in terms of the network issues here. So, Yes, sir. Yes, sir. thank you. At the outset, I really want to thank all the faculty members of the Bhagat Phool Singh Mahila Mahavidyalaya for collaborating with Gandhi Smriti and Darshan Samiti. ये एक इम्पोर्टेंट विषय जो वॉलंटियरिज्म के ऊपर हम 2 दिन का करने जा रहे हैं. रियली थैंकफुल फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट. आई थैंक मैडम शेफाली नागपाल जी, Dr. Vijay Mehra ji, Deepali ji, and Varuna ji. In fact, when I was first talking with Deepali regarding this workshop, 2 days workshop, and we were trying to explore the possibilities, at a personal level, we realized that when I used to work with the United Nations volunteers, Deepali had come
She was a student of BSW College at that time in Ambedkar University, and we were having a series of volunteering programs. So that was quite interesting, and I was telling her about some of the initiatives that we have taken up as part of the United Nations volunteers. Thank you, Deepali, once again for connecting with your university, and thank you everyone for this 2 days workshop that we are going to have. I'm sure as we start this journey. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you. I'm sure as we start our journey, there will be a lot of interesting questions. काफी सारे नए इंसाइट्स सीखने को मिलेंगे सभी से. मेरा खुद का जो अनुभव है जब हम वॉलंटियरिंग करते हैं, मैं खुद अभी भी काफी अलग अलग विषय में वॉलंटियर करने की कोशिश करता हूँ, अलग अलग हेल्प आइडियाज के साथ, और उसमें बहुत ज्यादा सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलता है. तो लेट्स स्टार्ट विद दिस, and I will start with these two interesting things, as our director sir had rightly pointed out on some of the really good volunteering efforts that has been taken up by the people across the world. ये जो पैंडेमिक से हम गुजर रहे हैं, कई लोग जो प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं, कई लोग अलग अलग काम कर रहे हैं. अभी कुछ दिन पहले, करीबन 1 महीना पहले, क्योंकि ज्यादातर हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो स्टूडेंट्स है भगत फूल सिंह महिला महाविद्यालय के, एक दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा जो वहाँ पे ये पैंडेमिक के कारण काफी सारे जो सीनियर सिटीजन है उनको जो लॉकडाउन में थे तो उनको प्रॉपर मेडिसिन वगैरह नहीं मिल रहे थे और काफी परेशानियां आ रहे थे. तो वो हमने टीवी में देखा, टीवी चैनल में, कि ये छात्रा जो है ये अलग अलग वो हेल्प कर रही थी काफी सारे ऐसे सीनियर सिटीजन को. खुद का बाइक था तो किसी को मेडिसिन चाहिए तो वो लेके जाती थी, उनको फोन करना पड़ता था, वो मेडिसिन उनको हेल्प के लिए हेल्प करते थे, और एट नो कॉस्ट एट ऑल. एंड दैट इज एन अमेजिंग काइंड ऑफ वॉलंटियरिंग इवन एट दिस पैंडेमिक, कि खुद का ज्ञान को रिस्क में रखते हुए वो छात्रा जो है लगातार काम कर रही थी और सीनियर सिटीजन तक पहुंच रही थी मेडिसिन और अलग अलग जो अन्य इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो लेके. तो ये एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वॉलंटियरिंग का जो हमें सोचना है कि व्हाट इज वॉलंटियरिंग इज आउट ऑफ वन सेल्फ विल. इन फैक्ट टू मी वॉलंटियरिंग इज अ डिस्टिंक्ट ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक. इन फैक्ट जो हम ज्यादातर समय कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली in every day in different forms we try and volunteer. कोई सड़क में बुजुर्ग जा रहे हैं तो हो सकता है हम उनको हेल्प करने की कोशिश करें सड़क पार करने के लिए. Those are the unconscious acts of volunteering. But there are times in our lives when we actually consciously feel that we should go and do something for the society, and that is something is basically the conscious act of volunteering. In fact, if we look at the main characteristics of volunteering, let us try to cull down the main characteristics of volunteering. ये जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये पूरा अपना जो एक्सपीरियंस है यूएन वॉलंटियर्स और अभी गांधी स्मृति और दर्शन समिति का पूरा जो एक्सपीरियंस वॉलंटियरिंग और वॉलंटियर्स को प्रमोट करने का, ये पूरा जो मेरा टॉक होगा वो टोटली फोकस्ड ऑन दैट एक्सपीरियंस होगा. तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वॉलंटियरिंग है वो है पहला केयरिंग, आपको केयरिंग होना है. दूसरा एक एटीट्यूड टू हेल्पिंग अदर्स, हेल्पिंग. तीसरा शेयरिंग, कि हम खुद के लिए नहीं दूसरों से अपना चीजों को शेयर करेंगे. शेयरिंग, द होल हैबिट ऑफ शेयरिंग. देन क्रिएटिंग न्यू अलायंसेस. खुद अकेले चले गए और कुछ करने की कोशिश किया, बहुत अच्छा है, मगर जब तक हम अलायंसेस, जब तक हम कोलैबोरेशन में काम नहीं करेंगे तो वो बेहतर काम नहीं कर पाएंगे. तो केयरिंग, वी शुड बी केयरिंग इन नेचर. सेकंड इज ट्राई टू हैव अ हैबिट ऑफ हेल्पिंग अदर्स. थर्ड इज शेयरिंग. फोर्थ इज क्रिएटिंग अलायंसेस सो दैट वी कैन वर्क कोलैबोरेटिवली. कोलैबोरेशन, जो मैं आगे चल के कुछ एग्जांपल्स दूंगा कि क्यों वर्किंग एज अ टीम ट्वाइस, क्यों कोलैबोरेशन इज एक्सट्रीमली क्रिटिकल, वो हम बात करेंगे. देन द नेक्स्ट इज सॉलिडारिटी. एक दूसरे के साथ सॉलिडारिटी में, especially in the context of this pandemic, we find that worldwide every one of us are in different kind of difficult situations, restrictions, lockdowns and all. And so
we must realize the importance of solidarity more than ever before, rather than competition. क्योंकि जब हम सोचेंगे कि हम एक दूसरे के साथ कंपटीशन करेंगे, मैं ये करने जा रहा हूँ उससे बेहतर करूंगा, तो वो वॉलंटियरिंग नहीं होगा. So we should not get into that whole trap of competition. So these are some of the essential characteristics of volunteering that we need to look at. जो volunteerism है, it is part of the Indian tradition and culture. जो निष्काम कर्मा जिसको हम कहते हैं, to do good without any expectation. In fact, when we are looking at the Indian tradition of volunteering, friends, I would like to share this beautiful quote of Swami Vivekananda, the selfless tradition of Indian volunteerism. Swami Vivekananda कहते हैं, ask nothing, want nothing in return. Give what you have to give. It will come back to you, but do not think of that now. It will come back multiplied 1,000-fold, but the attention must not be on that. Yet have the power to give, so give willingly. If you wish to help a man, never think what's that. Man's attitude should be towards you. So this essentially tells about the selfless nature of the Indian tradition of volunteerism. Since times immemorial, people in India have been volunteering. In fact, across the world, जो है सभी cultures में, सभी countries में volunteerism एक essential role play करता है. जो इंडियन कंटेक्स्ट में जो वॉलंटियरिज्म ट्रेडिशन जो था सेवा करने का, उसका एक मेजर कंटेक्स्ट जो आया, चेंज आया, जो विच टॉक्स अबाउट द वॉलंटियरिज्म लीडिंग टू volunteerism and development, volunteerism and constructive work. It came in the 20th century with the advent of Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi was one of the greatest volunteers who had lived here, and he has been inspiring large number of people across the world to continue their volunteer work and the selfless nature of service. Gandhi brought a unique, dimension to the volunteering aspect of India when he was talking about development, constructive work, education, different ideas. In Yerwada Mandir में गांधी जी लिखते हैं, voluntary service for others demands the best of which one is capable and must take precedence over service or self. In fact, गांधी जी का ऑटोबायोग्राफी में वो अपना ऑटोबायोग्राफी में फर्दर लिखते हैं, सर्विस कैन हैव नो मीनिंग अनलेस वन टेक्स प्लेजर इन इट. यानी कि जब तक हम इंजॉय नहीं करेंगे वॉलंटियर, ये ऐसा कुछ नहीं है, सिंस इट इज आउट ऑफ फ्री विल, सो दैट्स द रीजन, unless and until we enjoy it, unless and until it should come from within, we will never be able to be a good volunteer. So Gandhi ji writes, service can have no meaning unless one takes pleasure in it. When it is done for show or fear of public opinion, it stunts the man and crushes his spirit. In fact, इसी समय से जो है, जो हम आगे चल के चर्चा करेंगे कि हम जो है वॉलंटियरिज्म जो है उसका जो एस्पेक्ट है, यूथ वॉलंटियरिज्म स्पेशली इन दैट कंटेक्स्ट, उसको हम कैसे, उसमें क्या चैलेंजेस हैं, उसमें क्या क्या इश्यूज हैं आज के कंटेक्स्ट में, और इससे कैसे हम लिंक करेंगे. Am I audible, पंकज? सर थोड़ा सा वॉइस में ब्रेक हो रहा है सर आपका, थोड़ा सा. Okay. काफी लोगों को इश्यू आ रहा है सर, तो थोड़ा अगर आप उसको हेडफोन अगर आप करके अगर डायरेक्ट आप माइक पे करेंगे तो सर ज्यादा अच्छा वॉइस आएगा सर, आई थिंक. ओके, हेडफोन को निकाल दूं मैं? ओके, मे बी सर आप, हाँ सर, उसको अगर रिमूव कर देंगे तो उससे ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वॉइस आपका सर ब्रेक हो रहा है काफी, लोग काफी बोल रहे हैं सर इस के लिए सर. ओके, ठीक है जी. Now is it better, Pankaj? Much better. Yes sir. Much Yes better. sir. Yes sir. Yes, Yes, sir, sir. it is much Okay. better now. Yes sir. Okay. Thank you very much. So I was telling about what Gandhi ji wrote in his autobiography. Service can have no meaning unless one takes pleasure in it. When it is done for show or fear of public opinion,
it stunts the man and crushes his spirit. In fact, इसी को हम लिंक करेंगे। वेदा सर, yes please. वेदा सर, आप बहुत you are going rapidly fast, go a little slow. Yes, I will go. Yes, you are getting rapidly fast actually. Yes. Okay. So yes, please. What we will do is basically in this context we will discuss about कि आज के context में जो youth है, जो students है, जो volunteer करना चाहते हैं, उनके सामने क्या challenges हैं। और in fact मैं आपको कई जो हमने studies किए in the when we were there at the UN volunteers on youth volunteering, क्योंकि हमारे ज़्यादातर जो है वो participants जो हैं वो students हैं, तो उनके साथ हम share करेंगे what young people want from volunteering. Also गांधी जी ने जो एक नया dimension दिया, that was the inclusive nature of volunteering. उसमें जो है उसका जो हम एग्जाम्पल देंगे कि जो परचूरे शास्त्री जी थे, जो संस्कृत के बड़े स्कॉलर, ही वाज सफरिंग फ्रॉम लेप्रेसी एंड गांधी जी खुद, आप लोग जाएंगे सेवाग्राम में तो देयर यू विल फाइंड कि किस तरह से उनका एक आश्रम था, कुटीर था, और वहाँ पे गांधी जी खुद उनको बेसिकली हेल्प करते थे, उनके लिए पूरा काम करते थे, उनको वो सहायता करते थे। He was trying to help him out. So that is the inclusive nature of volunteering. In fact हम आगे देखेंगे कि inclusive nature of volunteering एक important aspect है when we are talking of volunteerism in the bigger context. With this little foundation of understand volunteering in Indian context and the Gandhian approach to volunteering, हम चलते हैं कि क्या बेनिफिट्स हमें मिल सकता है when we volunteer. जब हम एज एन इंडिविजुअल जाते हैं अलग अलग सिचुएशन में, डाइवर्स सिचुएशन में जाके हम वॉलंटियर करने की कोशिश करते हैं, तो एक ये लर्निंग प्रोसेस है हमारा। वी आर एबल टू सी द वर्ल्ड थ्रू मल्टीपल लेंसेस, यानी कि अलग अलग तरीके से, अलग अलग दिशा से, अलग अलग पर्सपेक्टिव से उस सिचुएशन को देखने का हमें एक नॉलेज मिलता है, हमको उस सिचुएशन को समझने के लिए एक नया टूल मिलता है। So basically, essentially, when we volunteer in diverse situations, we are able to see the world through multiple lenses. और जब हम अलग अलग कल्चर में अलग अलग ग्रुप्स के साथ जाके वॉलंटियरिंग करते हैं, तो उससे हमें we will be able to develop greater sensitivity, and most importantly, it will help us to overcome stereotypes. For example, आप हो सकता है आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो सोशल वर्क के स्टूडेंट्स हो, मान लीजिए कोई फिजिक्स, केमिस्ट्री, अलग अलग स्ट्रीम के स्टूडेंट्स, जब हम मान लीजिए पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के बीच में जाके उनके साथ काम करने की कोशिश करते हैं, तो बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स हमारे दिमाग में रहता है। दीज आर द कल्चरल स्टीरियोटाइप्स जिसको हमें ओवरकम करना होगा अगर हम बेहतर तरीके से वॉलंटियरिंग करेंगे। इनफैक्ट हमने एक संस्था है भोपाल में, आरुषि करके, उनके साथ एक बड़ा इंटरेस्टिंग काम शुरू किया है टू प्रमोट, क्योंकि द मेजॉरिटी ऑफ द सिचुएशन जो सोचा जाता है कि व्हेन वी आर वर्किंग विद पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, इट इज कि हम लोग जो हैं वी विल गो एंड वर्क विद देम कि उनके लिए काम करना है। बट व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, हमारा एक जो प्रोफेसर रोहित त्रिवेदी जी हैं, उनके साथ मिलके हमने एक आइडिया शुरू किया था, को पार्टनरशिप इन वॉलंटियरिंग, यानी कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एंड अदर पीपल एक साथ मिलके दे विल वॉलंटियर। तो इससे हम स्टीरियोटाइप्स जो है उसको ओवरकम कर सकते हैं। ऑल्सो जब हम वॉलंटियर करते हैं किसी कॉज के ऊपर, किसी के ऊपर, तो हम जो है अपना खुद का नॉलेज बेस वी विल बी एबल टू डेवलप। क्योंकि फॉर इंस्टेंस हम स्टूडेंट्स हैं, हम एक स्टडीज, हम अपना कोर्स का सिलेबस पढ़ रहे हैं, वो कर रहे हैं, मगर मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है, जो हम यूथ के साथ काम करते हैं और वो वॉलंटियरिंग करते हैं, उनका नया नया नॉलेज बढ़ता है, उनका जो एजुकेशनल, इनर एजुकेशन एंड आउटर एजुकेशन, वो डेवलप होता है। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स और बेनिफिट्स ऑफ वॉलंटियरिंग की हमें नए नए लोगों के साथ एंगेज करने की मौका मिलता है, एंड देन वी आर एबल टू बिल्ड ट्रस्ट
एंड रेसिप्रोसिटी अमॉन्ग्स्ट सिटीजन्स, यानी कि ट्रस्ट बिल्डिंग। हम किसी कम्युनिटी के साथ काम कर रहे हैं, उनके साथ ट्रस्ट एक डेवलप होगा और उनके साथ काम करने की मौका मिलेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि जब हम काफी सारे लोग इंडिविजुअल्स कंट्रीब्यूट वॉलंटियरिंग करते हैं, तो दैट मीन्स वी आर एबल टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स अ मोर कोहेसिव एंड स्टेबल सोसाइटी, और इससे जो है हमारा सोशल रिलेशनशिप्स और ज्यादा स्ट्रेंथन होंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ वॉलंटियरिंग इज कि हम जो एक्सक्लूडेड पॉपुलेशन है, जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हैं, जब हम उनके बीच में जाके वॉलंटियरिंग करते हैं और उनके साथ को पार्टनरशिप करते हैं टू प्रमोट वॉलंटियरिंग आइडियाज, वॉलंटियरिंग इनिशिएटिव्स, तो देन वी आर एक्चुअली इंटीग्रेटिंग इनटू दिस सोसाइटी द excluded or the marginalized. Also, as young people जो है वो जब वॉलंटियरिंग करते हैं अलग अलग विषयों पे, उनका जब स्किल सेट्स बढ़ता है, उनका लाइफ स्किल एजुकेशन होता है, तो देन एसेंशियली इट हेल्प्स इन एम्प्लॉयबिलिटी। उनको आगे चल के, क्योंकि कई एरियाज में, कई सिचुएशन में उनको हैंडल करने का मौका मिलता है, उनको पता लगता है कि कैसे एक सिचुएशन में कैसे उस सिचुएशन को हैंडल करे। सो दैट helps them in developing that skill set of handling difficult situations, and that helps them in their in the future when they go out to work in any organizations. So these are some of the very very important जो benefits हैं volunteering का। In fact जो contemporary issues हैं on volunteering, अब UN का एक संस्था है यूनाइटेड नेशंस वॉलंटियर्स, उसके साथ काफ़ी लोग जुड़ते हैं वर्ल्ड वाइड टू अंडरस्टैंड और डू प्रमोट डिफरेंट वॉलंटियरिंग अक्रॉस द वर्ल्ड। उसमें एक डेफिनेशन, जो कंटेम्प्रेरी डेफिनेशन आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, which is the contemporary definition of volunteering in a simple way, and it was formulated 2001 में पूरा वर्ल्ड में इंटरनेशनल ईयर ऑफ वॉलंटियरिंग मनाया गया, and after that large number of initiatives, policies and approaches by different governments across the world initiate हुए. So and then 2011 में it was the 10th anniversary of the 10 years of the International Year of Volunteers. So एक interesting definition किया गया, formulate किया गया at a global level. तो ये मैं definition आपको बताना चाहता हूँ। Volunteering is the fundamental building block of the civil society. It brings to life the noblest aspiration of humankind, the pursuit of peace, freedom, opportunity, safety, and justice for all people. All people in the world should have a right to freely offer their time, talent, and energy to others and their communities. So ये एक छोटा सा definition जो global level में formulate किया गया। अभी हमने बात किया एक इंडियन ट्रेडिशन ऑफ वॉलंटियरिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वॉलंटियरिंग, उसके बाद हमने बात किया बेनिफिट्स ऑफ वॉलंटियरिंग। अभी हम फोकस कर रहे हैं रोल ऑफ यूथ इन वॉलंटियरिंग एंड क्या यूथ को मिलता है व्हेन दे वॉलंटियर। आज के दिन में सभी यूथ के पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, देयर आर कंपीटिंग इंटेलिजेंसेस। उनका जो फ्री टाइम है उसमें कैसे वो बिताएंगे, अभी के दिन में स्मार्टफोन है, फिल्म्स हैं, they can go out and party with their friends. There are so many competing indulgences. So उसमें कहाँ पे स्पेस है वॉलंटियरिज्म का, क्योंकि एक पूरा दिन में 24 घंटा होता है, आपको पढ़ाई भी करना है, आपको अपना सिलेबस भी कंप्लीट करना है, अपना फ्री टाइम जो है उसमें कैसे आप कंस्ट्रक्टिवली यूज करेंगे, दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हियर वी आर टॉकिंग ऑफ कंपीटिंग इंडल्जेंसेस। उसमें जो है हमने पाया, हमने 2 स्टडीज किए थे इसमें, तो 2 स्टडीज के बारे में बताऊंगा कि क्यों यूथ जो है वॉलंटियरिंग करने जाते हैं, एंड दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू डिस्कस हियर। So one of the most important reason is basically to when we think of volunteering is that we want to gain new knowledge. Most of the students जो हैं वो volunteer करना चाहते हैं क्योंकि वो नया knowledge को acquire करना चाहता है।
दूसरा जो है, आज के कंटेक्स्ट में बहुत सारे जो आज के कंटेक्स्ट में जो बहुत सारे यूथ वॉलंटियर करना चाहते हैं, क्योंकि वो बेसिकली सोचते हैं कि वो दे वांट टू बिल्ड देयर रिज्यूमे। वो अपने बायोडाटा में लिखेंगे कि बेसिकली हमने इसके साथ वॉलंटियरिंग किया, उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ वॉलंटियरिंग किया, जिससे कि आगे उनको फायदा मिले। प्लस ऑफ कोर्स जो स्टूडेंट्स इंटरनेशनल किसी यूनिवर्सिटी में जाना चाहता है वो तो मैंडेटरी है। तो वो स्टडी से हमें पहला जो मिला, उसमें मिला कि यूथ जो वॉलंटियर करना चाहते हैं तो दे वांट टू गेन इन एजुकेशन knowledge outside their curriculum. That was the first. Second was to develop their own resume building, जिसको कहते हैं उसमें। Then new experiences and skills. इसमें मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा कि there was this student from AIIMS में, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का एक स्टूडेंट था जब हम यूएन वॉलंटियर्स में थे। उसका नाम था विभास। और विभास जो है वो आके यहाँ पे यूएन वॉलंटियर्स में वॉलंटियर करते थे। तो उसको एक दिन पूछा मैंने कि भाई तुमको, यू आर अ स्टूडेंट ऑफ, यू आर डूइंग मेडिकल स्टडीज, एमबीबीएस कर रहे हो, और बहुत ज़्यादा टफ स्केड्यूल होता है जो एमबीबीएस करते हैं, तो व्हाट मेक्स यू टू गेट इंस्पायर्ड टू कम हियर एंड वॉलंटियर। तो उसने कहा कि भैया बेसिकली क्यों मैं आना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास दो ऑप्शंस हैं मेरे फ्री समय में, या तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ फिल्म देखने जाऊँ या किसी कैफे में जाऊँ या कुछ करूँ, मगर यहाँ पे मैं आता हूँ क्योंकि मेरे को एक नए टाइप का एक्सपीरियंस मिलेगा। आई एम वर्किंग विथ इंटरडिसिप्लिनरी ग्रुप। कोई पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, कोई सोशल वर्क के स्टूडेंट्स हैं, कोई सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, अलग अलग टाइप के स्टूडेंट्स हैं। तो उनके साथ नया एक्सपीरियंस होगा, नया स्किल सेट सीखने को मिलेगा, क्योंकि हम एमबीबीएस के स्टूडेंट्स हैं तो हमको फिर उसी एरिया में स्किल सेट्स मिलता है। मगर जब हम अलग अलग इंटरडिसिप्लिनरी बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के साथ काम करने की कोशिश करेंगे तो हमें नया एक्सपीरियंस मिलेगा, नया स्किल मिलेगा। तो दैट इज very very important aspect of why young people want to volunteer. Then नए लोगों से मिलना, that is something very important. Then personal satisfaction, that हम कुछ अपने spare time में we are doing something worthwhile. So these are some of the important things जो निकल के आया कि why young people want to volunteer. इसमें जो कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स हैं वॉलंटियरिंग के, वो दो टाइप का है। एक तो लॉन्ग टर्म वॉलंटियरिंग, जो हम एक किसी ग्रुप के साथ या हमारा खुद का वॉलंटियर इनिशिएटिव हो, अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलके लंबे समय तक हम वॉलंटियर कर रहे हैं। मगर ये पाया गया फ्रॉम डिफरेंट स्टडीज एंड ऑल्सो खुद का अपना जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि इंक्रीजिंगली ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं आज के दिन में शॉर्ट टर्म वॉलंटियरिंग करना चाहते हैं या एपिसोडिक, यानी कि बेसिकली एक कोई इवेंट हो रहा है तो उसमें आपने वॉलंटियर किया, एंकरिंग कर दिया या कुछ कर दिया, तो बस उसके बाद उस ग्रुप के साथ आप और नहीं जुड़े। या शॉर्ट टाइम, 1 महीना 2 महीने के लिए आपने किसी ग्रुप के साथ या किसी के साथ या किसी इशू में काम किया और वो आप चले गए। तो दिस बेसिकली देयर आर टू टाइप्स, दैट मीन्स लॉन्ग टर्म वॉलंटियरिंग जो ज्यादातर बहुत कम हो रहा है धीरे धीरे, स्पेशली इन द कंटेक्स्ट ऑफ यूथ, और दूसरा जो है एपिसोडिक और शॉर्ट टर्म वॉलंटियरिंग। क्योंकि एक मेजर इशू है जब यंग पीपल, जो यूथ अपना खुद का वॉलंटियर इनिशिएटिव, मैं एनजीओ की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं बोल रहा हूँ कि प्योर वॉलंटियरिंग, वॉलंटियर ड्रिवन इनिशिएटिव। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एनजीओ ड्रिवन इनिशिएटिव एंड वॉलंटियर ड्रिवन इनिशिएटिव। सो हियर द बिगेस्ट चैलेंज आज के दिन में इज दैट कि देयर इज अ चैलेंज इन रिसोर्स मोबिलाइजेशन। जब यूथ, मान लीजिए 5-6 यूथ मिलके कुछ इनिशिएटिव लॉन्च करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो मेजर प्रॉब्लम आज के दिन में होता है कि रिसोर्स मोबिलाइजेशन का, कहाँ से रिसोर्सेस आएंगे। सो दैट इज एन एक्सट्रीमली क्रिटिकल एलिमेंट ऑफ वॉलंटियरिंग। सो दीज आर सम ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ यूथ वॉलंटियरिज्म, जिसको मैंने कहा कि ऑल्सो ऑफ कोर्स मैंने जो पाया, कई जो स्टूडेंट्स हैं वो प्योरली जो है उनमें बहुत कम कमिटमेंट है और ज़्यादातर जो है वो अपना सर्टिफिकेट लेने के लिए वो आते हैं। मेरे को याद है एक स्टूडेंट आई थी, वो शी वाज डूइंग हर स्टडीज इन डेंटल साइंसेस,
और उसको प्योरली सर्टिफिकेट चाहिए था। 1-2 दिन आने के बाद वो उसने बोला कि मेरे को सर्टिफिकेट चाहिए क्योंकि मेरे को कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है। तो उन ऐसे ग्रुप्स जो हैं, ऐसे इंडिविजुअल्स जो हैं, उनको प्योरली जो है उनमें कमिटमेंट या पैशन कम है, मगर दे आर मोर इंटरेस्टेड टू गेट अ सर्टिफिकेट्स। कई बार हम गांधी स्मृति में भी कई जैसे कॉलेजेस के स्टूडेंट्स आते हैं और वो 1-2 दिन हुआ नहीं, दूसरा तीसरा दिन बोले कि भाई हमें सर हमें एक सर्टिफिकेट दे दीजिए। सो दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट challenges to promotion of youth volunteerism. Now we are talking now on जो मैंने emerging trends की बात किया, तो स्टेट ऑफ द वर्ल्ड वॉलंटियरिज्म रिपोर्ट है जिसमें कि जो यूनाइटेड नेशंस वॉलंटियर्स निकालती है, और एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो इनफैक्ट 2011 का ही रिपोर्ट में उन्होंने दिया, रोल ऑफ माइक्रो वॉलंटियरिज्म, जो आज के दिन में और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। हाउ वी यूज द इश्यूज ऑफ SMS या WhatsApp और other things to promote information, give information, inform people's choices, monitor public choices, etc. In fact, आगे चल के गुलशन अपना मीडिया लिटरेसी के सेशन में बताएंगे when we are talking of micro volunteerism, use of some of these tools of social media like SMS या email या WhatsApp या कुछ उसमें हम कैसे फेक न्यूज़ या फेक इंफॉर्मेशन से बचें, वो आज के दिन में और एक मेजर चैलेंज है हमारे साथ। अभी नेक्स्ट जो हम सेगमेंट में जाएंगे क्विकली, वो है ट्रेट्स ऑफ एन इफेक्टिव वॉलंटियर। ठीक है, आपने मान लिया आप में पैशन है, आप में इंटरेस्ट है, आप चाहते हैं कि कुछ जाके समाज में काम करे, तो व्हाट आर द इम्पोर्टेंट ट्रेट्स दैट यू हैव टू बिकम एन इफेक्टिव वॉलंटियर। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज सेल्फ डिसिप्लिन, क्योंकि हम सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होंगे तो हम वो इफेक्टिव वॉलंटियर नहीं हो सकते हैं। हमने सोचा कि हम जो है मान लीजिए कुछ स्लम एरिया में जाके पढ़ाने की कोशिश करेंगे बच्चों के साथ, तो हम 1 दिन गए, 2 दिन गए, उसके बाद फिर भूल गए, फिर नेक्स्ट 10 दिन के बाद गए। दैट्स नॉट सेल्फ डिसिप्लिन। So first and foremost, to be an effective volunteer is to have a self discipline. अगर हमने किसी को बोला है कि हम ऐसे ऐसे काम करेंगे तो वो हमें करना चाहिए, unless and until it's some extraordinary situation हमको, क्योंकि इसमें जो मैंने पहले बताया volunteerism is all about trust building। अगर वो ट्रस्ट टूट गया तो फिर वो जो कम्युनिटी के साथ आप वापस जाके काम करने की कोशिश करेंगे वो खत्म हो जाएगा। So self discipline is extremely important and effective. Next is perseverance. कई बार जो है हमने देखा है as volunteer initiatives हमको बहुत सक्सेस मिला और फिर 2 दिन के बाद फिर फेलियर मिला, यानी कि 1 step forward and 2 steps backward। तो हम उसमें ही फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे, तो फिर वो खत्म हो जाएगा, हम और वॉलंटियरिंग नहीं कर पाएंगे। मगर what is important is perseverance। अगर हमें पैशन है, हमारा कंपैशन है, पैशन है कि हम इस काम को करेंगे, इस इशू में काम करेंगे, तो परसिवरेंट होना जरूरी है, लगातार जुड़े रहना बहुत जरूरी है। Next very important is compassion. Compassion is extremely important when we are trying to volunteer. Without compassion, and compassion जो हम आगे चल के बात करेंगे कि compassion for not just other human beings, to be a complete volunteer we must understand कि जो हम बात करते हैं, गांधी स्मृति का एक इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है ऑन प्रमोशन ऑफ म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस, यानी कि ह्यूमन नेचर एंड ऑल अदर लिविंग बींग्स, उसका इंटरडिपेंडेंस को जानना, उसका इंटरडिपेंडेंस को अपने जहन में रख के हमको इनिशिएटिव लेना। तो कंपैशन फॉर ऑल अदर लिविंग बींग्स, नेचर एंड अदर ह्यूमन बींग्स ऑफ कोर्स। So compassion is an important trait of an effective volunteer. Next is, dreamer, creative imagination, who can visualize on what they can achieve. मैं इसमें एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल दूंगा अपना जो क्रिएटिव इमेजिनेशन का। एक हमारा ऑफ कोर्स वो अभी उसी समय आफ्टर, क्योंकि कल हम बात करेंगे टीम बिल्डिंग का और कैसे अच्छे वॉलंटियर ग्रुप जो इस तरह के विजुअलाइजेशन और क्रिएटिव इमेजिनेशन के साथ शुरू होता है और उसके बाद वो बिखर जाता है, उसका मैं बहुत ही अच्छा एक एग्जांपल दूंगा। मगर यहाँ पे उसका एग्जांपल दूंगा टीम दीप्ति का, डिजिटल इनोवेटर्स प्लेटफॉर्म फॉर टैकलिंग इनइक्वालिटीज। इनफैक्ट मैडम जो है दीपाली
जी इन सम वे और द अदर उसमें जुड़ी थी जब वो स्टूडेंट थी, और हमारा टीम लीडर उसमें था मिस्टर नीलेश कुमार। वो जो ग्रुप था, बिकॉज आई एम टॉकिंग ऑफ क्रिएटिव इमेजिनेशन, उस समय 2001 में हार्डली इतना टेक्नोलॉजी का एडवेंट हुआ था, और उसी समय वो सोचे थे कि हम कैसे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स को, डिफरेंट डिफरेंट इनिशिएटिव्स को थ्रू टेक्नोलॉजी जोड़ें, एंड हाउ वी कैन टैकल द डिजिटल डिवाइड। और उसमें IITs और दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, कई अच्छे अच्छे सम ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस ऑफ दिल्ली के स्टूडेंट्स थे, एंड दे हैड दैट विजुअलाइजेशन, दे वर ड्रीमिंग कि हमको किस तरह से थ्रू टेक्नोलॉजी अलग अलग ग्रुप्स को हेल्प कर सकते हैं। सो यू हैव टू बी अ ड्रीमर एंड यू हैव टू ब्रिंग इन creative imagination. Next is honesty. जिस कम्युनिटी के साथ जा रहे हैं आप खुद मोटिवेटेड होना चाहिए, एंड यू हैव टू बी, देयर शुड बी द राइट मोटिवेशन। सो इन फैक्ट when we are talking of right motivation और अपना खुद का एज एन इफेक्टिव वॉलंटियरिज्म का बात कर रहे हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट वी हैव टू बी इन पीस विथ आवरसेल्फ। वी शुड हैव द कॉन्फिडेंस इन द नॉलेज ऑफ वन सेल्फ। इन फैक्ट जब हम पीस विद इन वन सेल्फ की बात करते हैं, क्योंकि हम खुद अंदर से बहुत विचलित हो, अंदर से देयर इज लॉट ऑफ टर्मोइल हो, तो हम फील्ड में जाके काम करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो very very important traits of an effective volunteer is to be peace within oneself. और in fact जब हम volunteer करते हैं when we are peace within oneself, we must realize the connectivity between the self and the society। यानी कि जब हमको पैशन है volunteering करने का, और उस समय हमें realization होना चाहिए कि हमारा जो self है खुद का और society के साथ क्या connectivity है। in fact जब हम दूसरों के लिए काम करते हैं, दूसरों के लिए काम करने की कोशिश करते हैं, तो फिर हमको जो मैंने बोला म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस, वी विल रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन इंटरकनेक्टेडनेस, कि हम लोग सब इस यूनिवर्स में सब लोग कनेक्टेड हैं, और जब सब लोग कनेक्टेड हैं तो हमको सभी ग्रुप्स के साथ, सभी नेचर, लिविंग बींग्स, सभी का भले के लिए सोचना चाहिए। एंड मगर वो तभी होगा जब हम खुद जाके वॉलंटियरिंग करेंगे, एंड व्हेन वी वॉलंटियर, एज आई सेड, वी विल रियलाइज आवर इंटरकनेक्टिविटी। बट यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज जो भी यूथ हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनके दिमाग में बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वॉलंटियरिंग तो आप अपने फ्री विल के साथ कर रहे हो, किसी ने आपके ऊपर प्रेशर नहीं डाला है कि आपको वॉलंटियरिंग करना है, मगर टू बी एन इफेक्टिव एंड रिस्पॉन्सिबल वॉलंटियर हमको जो है वी कैनॉट मेक चॉइसेस ऑन द फ्लाई, कि मेरे को आज मैंने सोचा कि भाई मेरे को जाके बच्चों को पढ़ाना है, आज सोचा कल चले गए, परसों भूल गए। ऐसा इररिस्पॉन्सिबल एक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने बात किया, जो ट्रेट्स के बारे में चर्चा किया, एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। बिकॉज इफ वी टेक अ डिसीजन आउट ऑफ द ब्लू कि हाँ हमें ये करना है, कल चले गए, तो उसमें क्योंकि इट्स वेरी, जो मैंने अपने आप महसूस किया है, इनफैक्ट गांधी स्मृति यूज्ड टू वर्क एक्सटेंसिवली इन मेनी ऑफ द विलेजेस ऑफ असम, और हम शिशु पंचायत प्रोग्राम चलाते थे, और हमको देखते थे क्योंकि हमारा कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं था उन गाँव में, तो काफी टाइम लगता है। एज सोशल वर्क, मोस्ट ऑफ यू आर सोशल वर्क स्टूडेंट्स, यू हैव टू रियलाइज इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम फॉर ट्रस्ट बिल्डिंग। जिस कम्युनिटी में आप जाते हो वहाँ पे आपको जो है आपको बेसिकली आपको जो है कनेक्शन बनाने में, आपको ट्रस्ट बिल्डिंग करने में काफी टाइम लगता है। बट व्हेन यू आर गिविंग सो मच ऑफ टाइम एंड एनर्जी, इट्स नॉट दैट कि आप गए 2 दिन काम किए उसके बाद खत्म हो गया। सो दैट इज इट इज अ रियली बैड थिंग, इट्स द मोस्ट इररेस्पॉन्सिबल थिंग to be done. So we must keep that in mind all the time in that context. उसके बाद जो important aspects हैं, इसमें वही जो मैंने कहा, abrupt decision to volunteer and then withdraw. It is not the best thing to be done when we are doing volunteerism. We should not be taking
डिसीजंस इम्पल्सिवली कि हमने ये जो इनिशिएटिव लिया इसके बाद ये करेंगे वो करेंगे। हमको देखना है कि हम स्टूडेंट्स हैं। आई एम टॉकिंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्टूडेंट्स एंड वॉलंटियरिंग हियर, क्योंकि ज्यादातर ऐसे एज वी रियलाइज दे आर ऑल स्टूडेंट्स, कि हमको देखना है कि हमको इतना समय पढ़ाई करना है, हमको ये करना है, हमारे टाइम इतना है। तो हमने सोचा कि हम ये भी करेंगे वो भी करेंगे, पूरा अपना फ्रेमवर्क बना लिया और सब कुछ हौच पौच हो गया और फिर खत्म हो गया। ऐसा बहुत सारे हमने इनिशिएटिव देखे हैं जो बिल्कुल तुरंत खत्म हो जाता है जब हम प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में नहीं करते हैं और हम ओवर एम्बिशियस हो जाते हैं कि हम ऐसा लगता है। कई स्टूडेंट्स को मैंने महसूस किया, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के साथ जब हम इंटरैक्ट करते हैं और वो वॉलंटियर करना चाहते हैं तो वो सोचते हैं कि हम पूरा एक बड़ा रिवोल्यूशन लेके आएंगे कि हम सबका एजुकेशन पूरा वर्ल्ड में, पूरा कंट्री में एजुकेशन का प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, ऐसा एम्बिशियस वो हो जाएगा। तो व्हाट वी मस्ट डू इज टेक बेबी स्टेप्स, छोटे छोटे कदम, क्योंकि हमारे पास टाइम कंस्ट्रेंट्स हैं, टाइम कंस्ट्रेंट्स के साथ साथ लिमिटेशंस है, रिसोर्सेस के अलग अलग चीजें हैं। तो वी हैव टू टेक बेबी स्टेप्स अगर हमारा इनिशिएटिव को सक्सेसफुल होना है तब। इनफैक्ट मेरे को याद है एक स्टूडेंट थी अंजलि का करके, वो जो है वो स्लम्स के बच्चों के साथ काम करने की कोशिश करते थे। तो उसके बाद जो है उसने सोचा कि मैं उनको बुक्स भी दिलवाऊंगी, मैं उनको ये भी करवाऊंगी, इनको ये उनके साथ ये कंपटीशन करवाऊंगी, हर दिन नए नए आइडियाज, और जो कोर चीज था वो छूट रहा था। फिर हमने उनके साथ बैठ के बोला कि भाई ठीक है, लेट अस फोकस ऑन 1 or 2 स्मॉल थिंग्स। और जब हम 1 or 2 स्मॉल थिंग्स में काम करेंगे, और इसी में इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट का, क्योंकि आपको रियलाइज करना है आप स्टूडेंट हैं तो आपको टाइम मैनेजमेंट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। मेरे को याद है, मैं एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल इस यहाँ पे देना चाहता हूँ। अभी वो बैंगलोर में कॉलेज में पढ़ती है, कनुप्रिया करके, और कनुप्रिया उस समय 10th में पढ़ती थी जब से मैं उसको जानता था, रादर 9 से जानता था। तो 10th में उसको मैंने एक वॉलंटियर इनिशिएटिव के साथ थी वो, तो उसको मैंने बोला कि उसके मदर को, क्योंकि 10th के बोर्ड एग्जाम के पहले, तो मैंने उसके मदर को फोन किया कि अभी वो कर सकती है क्या कनुप्रिया। तो उसके मदर ने कहा बिल्कुल कर सकती है। मैंने कहा अभी तो 10th का बोर्ड एग्जाम का 2-3 महीना है, सिर्फ 2 ही महीना है। बोले नहीं, अभी तो कल वो जो है संडे है और कल वो एक जो विजुअली चैलेंज है उनका एक मोटर कार रैली को कोऑर्डिनेट कर रही है। एवरीथिंग इज टाइम मैनेजमेंट। इनफैक्ट मेरे को याद है 12th के बोर्ड एग्जाम के पहले जनवरी में वो गई थी श्रीलंका टू रिप्रेजेंट इंडिया इन अ सार्क चिल्ड्रंस समिट। और फिर एग्जाम्स के बीच में सार्क वालों ने मेरे को रिक्वेस्ट किया कि अगर वो एक कोई रिपोर्ट दे सकती है तो उसके मदर को फिर से फोन किया मैंने। तो उसके मदर ने कहा हाँ, उसने टाइम मैनेज पूरा करती है और बोर्ड एग्जाम के बीच में ही वो दे सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हाउ यू मैनेज योर टाइम इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, और वो तभी यूजफुल होगा जब आप सोचेंगे कि छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लेंगे, अपना लिमिटेशंस को जानेंगे, टाइम कंस्ट्रेंट्स को जानेंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टू वर्क ऑन अ प्रॉपर फ्रेमवर्क। यू सी, आप सोशल वर्क में, प्रोफेशनल सोशल वर्क में आप कई चीजें सीखते हैं कि हाउ यू डेवलप एन एक्शन प्लान, हाउ यू गो टू द कम्युनिटी एंड वर्क। Here is an important aspect, even if you are volunteering, even if there is no money involved, even if there is no professional aspects involved, but even then it's so important to develop a proper framework. अगर आपका framework proper नहीं है, आपका action plan जो आप क्या करना चाहते हो, you don't have that goals, you don't have that focus, क्योंकि most important कई हमने देखा कि हम जो करना चाहते हैं उसमें clear goals नहीं है, हम बहुत ही clarity नहीं है हम पे कि हम करना क्या चाहते हैं। So that is again an extremely critical aspect of volunteerism, developing a framework with clear goals and realistic objectives. What is important कि हमने फिर से कई एग्जाम्पल हमारे सामने था। मैं फिर से विभास का एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि वो दिल्ली में डिसेबल्ड फ्रेंडली हॉस्पिटल्स को एडवोकेसी के तौर पे वो प्रमोट करना चाहता था। तो वो और उसका फ्रेंड थी तानिया, दोनों मिलके, और उन्होंने बिल्कुल 5 या 6 हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल पहले वो किए, और उनके गोल्स थे 1 2 3 4, और एग्जैक्टली ओवर एम्बिशियस नहीं था।
क्योंकि उनको पता है कि उनका स्टडीज का प्रॉब्लम है और कई चीजें हैं, लिमिटेशंस हैं। तो रियलिस्टिक गोल्स विथ योर लिमिटेशंस, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट इज कि हमको हमारा जो ऑब्जेक्टिव्स हम क्या करना चाहते हैं एज वॉलंटियर, वो फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। हम यहाँ पे अपने ग्रुप में मिलके हमने सोचा कि हम XYZ चीज करेंगे, मगर हम जब फील्ड में जाते हैं तो फील्ड टोटली डिफरेंट होता है। इनफैक्ट मैं ऐसे स्टूडेंट्स ऑफ सोशल वर्क, क्योंकि इवन दो आई एम नॉट फ्रॉम द बैकग्राउंड ऑफ सोशल वर्क, बट जो हम पढ़ते हैं एज स्टडीज इन द सोशल वर्क डिपार्टमेंट, और जब हम फील्ड में जाते हैं तो यू डिलर्न लॉट ऑफ थिंग, आपको अनलर्न करना पड़ेगा कई चीजें, और बिल्कुल ही नए नए चैलेंजेस, नए चीजें निकल के आएंगे। सिमिलरली एज अ स्टूडेंट, आई एम बेसिकली अ स्टूडेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन, तो हमने जो यूनिवर्सिटी में पढ़ा और जब हम फील्ड में जाएंगे तो टोटली अंतर होता है। तो हमें फ्लेक्सिबिलिटी रखना पड़ता है। अगर हम रिजिड हैं कि हमको यही करना है, तो हो सकता है हम जिस कम्युनिटी के साथ जाके काम करने की कोशिश कर रहे हैं वो दिक्कत हो जाए वहां पे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस एस्पेक्ट इज शेयर्ड अप्रोच, कि हम लोग एज अ टीम जो है कैसे हम काम करें, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक टीम में काम करना, कल हमारा सेक्शन होगा जिसमें कि हम और डिटेल में बात करेंगे कि टीम बिल्डिंग और शेयर्ड अप्रोच कैसे हो सकता है। क्योंकि जो है इनफैक्ट ये जो इम्पोर्टेंट हमने एस्पेक्ट निकाला जब हम कई ग्रुप्स के साथ वॉलंटियरिंग करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वॉलंटियर्स स्टार्ट थिंकिंग अबाउट सॉल्यूशंस without developing insight on what the problem or concern they are going to address. हम पहले ही सॉल्यूशन में निकल जाते हैं कि क्या हम ये सॉल्यूशन हो सकता है, मगर वो क्या प्रॉब्लम है या कंसर्न है और हम कैसे उसको एड्रेस करेंगे, उसको क्रिटिकली हम एनालाइज करने की कोशिश करते ही नहीं। इन सच केसेस जो हमारा जो ऑब्जेक्टिव्स है दे बिकम वेग और डिस्टॉर्ट द प्रायोरिटीज, जो हमारा प्रायोरिटीज है वो डिस्टॉर्टेड हो जाता है। Next important trait of volunteering is that कि how we learn and understand others' perspectives. इसमें एक मेजर प्रॉब्लम ये आता है क्योंकि कई बार आप लोग मोस्टली सोशल वर्क के स्टूडेंट्स हैं कि हम समझते हैं कि हमने पढ़ाई किया, या मान लीजिए मास कॉम के स्टूडेंट्स किसी भी यूनिवर्सिटी से, और हम फील्ड में गए और हमको लगता है कि जो कम्युनिटी के साथ हम काम कर रहे हैं उनको तो कुछ आता नहीं है, हमको सब कुछ आता है, और हमारा जो मेन पहला फंडामेंटल एम होता है कि हम अपना जो चीजें हैं वो थोपना चाहते हैं। तो हमको वो नहीं करना है। एज अ वॉलंटियर हमको दूसरे का पर्सपेक्टिव को जानने और समझना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। We must try to understand and learn from others' perspectives and experience, appreciate the values, beliefs and practices of other cultures. So these are some of the important traits of volunteers. Yes, please. सर आपके पास कोई कुछ बोल रहा है सर क्या? नहीं, कोई नहीं है मेरे सामने, बिल्कुल खाली है। तो हमने ये ट्रेट्स ऑफ एन इफेक्टिव वॉलंटियर्स कवर किया। तो ये जो हमने यानी कि पूरा बैकग्राउंड एक फाउंडेशन डालने की कोशिश किया कि व्हाट इज वॉलंटियरिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वॉलंटियरिंग, यूथ वॉलंटियरिंग, चैलेंजेस एंड आइडियाज एंड ट्रेट्स ऑफ एन इफेक्टिव वॉलंटियर, जो हमें मद्देनजर रखना पड़ेगा कि जब हम एज अ वॉलंटियर जाते हैं एज स्टूडेंट्स, क्या क्या हमको दिमाग में रहना चाहिए। तो इसके बाद जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट आता है कि हमारा क्या इनोवेशन होता है, विजन होता है, उसके लिए मैं अपना जो साथी है गुलशन को रिक्वेस्ट करूंगा, मगर ये वाला सेशन, इस टॉक सेशन को समाप्त करने के पहले मैं एक गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का बहुत ही सुंदर कोट है जिसको मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मैं उससे समाप्त करने की कोशिश करूंगा। I slept and dreamt that life was joy. I awoke and saw that life was service. I acted and behold, service was joy. जब volunteering जो है वो it should lead to joy. We must enjoy. We must really enjoy to the fullest extent when we are volunteering. And as an individual who has also volunteered for a long time, I can tell you when you volunteer in any form, you really enjoy. So now I request Gulshan to please start his session. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. Thank you. गुलशन जी, गुलशन जी आप सुन पा रहे हैं? गुलशन जी सुन पा रहे हैं आप हमें?
सर गुलशन जी हैं? गुलशन सर। आई मैं तो थिंक भी वहाँ पे दोबारा कोई, वहीं पे मेरे को लगता है कोई प्रॉब्लम है इन टर्म्स ऑफ नेटवर्क हो सकता है। सर आज आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छा लगा, एग्जांपल आपने बहुत अगर अच्छे अभी दिए। गुलशन नहीं आता है तो मैं अपना कम्युनिकेशन हाँ वाला शुरू कर दूं, सो दैट वी डोंट वेस्ट टाइम। हाँ सर, बिल्कुल कर सकते थे जी। गुलशन, कैन यू हियर मी? नो। गुलशन सर आ So गए let, हैं। हेलो। हाँ हेलो आ गए हैं, गुलशन। आ गए हैं सर, आ गए हैं, गुलशन जी आ गए हैं, गुलशन जी आ गए हैं। मे भी हो सकता है कुछ नेटवर्क इशू हो गया हाँ, है हेलो, कुछ सर उनके तरफ end पे। नेटवर्क का हाँ हाँ प्रॉब्लम है हमारे आगे वहाँ पे। आगे आगे। आ रही है मेरी? गुलशन जी एक आपसे मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, आप है ना अपना वीडियो आप भी ऑफ करेंगे तो थोड़ा सा ना वीडियो ऑफ है, नेटवर्क इशू बिल्कुल नहीं। बिल्कुल वीडियो ऑफ कर लिया है बिल्कुल मैंने। जी जी, अब बहुत तो ऑडिबल है सर। ठीक है सर, ठीक है, थैंक तो यू सो गुलशन, मच। प्लीज जी स्टार्ट टॉकिंग ऑन द होल आइडिया ऑफ इनोवेशंस इन वॉलंटियरिंग। हाँ, मुझे लगता है समय बहुत ज़्यादा हो गया है और लोगों के पास डेटा भी बहुत कम बचा होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं बहुत छोटे में अपनी बात खत्म करता हूँ। हेलो। हाँ जी सर, आप शुरू करिए सर। हेलो हेलो। सर, आप ऑडिबल हैं, आप ठीक अपना ठीक है। हाँ, सेशन स्टार्ट करिए। ओके सर। सभी से नमस्ते। एक बात हमको ये जरूर स्वीकार कर लेनी चाहिए और मान लेनी चाहिए कि हम सभी लोग लाइफ टाइम वॉलंटियर होते हैं। मैं इसको एक एग्जांपल से समझा भी सकता हूँ। हम सब सोशल ह्यूमन बीइंग हैं, हम लोग सब एक समाज में रहते हैं। कोई भी जो इंसान है, कोई भी जो मनुष्य है, कोई भी ह्यूमन बीइंग है, वो एक बंद कमरे में रह करके बड़ा नहीं हुआ। हम लोग सोशल हैं, हम सभी लोगों से मिलते हैं, केवल परिवार में नहीं रहते, बाकी लोगों से भी मिलते हैं। तो जितनी इस आज के वर्कशॉप में जितने भी लोग जुड़े हैं, उनकी जितनी भी उम्र है और उतनी उम्र उन लोगों ने जिन लोगों के बीच में रहकर गुजारी है, चाहे वो उन लोगों को जानते हो या ना जानते हो, लेकिन प्रत्यक्ष कहिए या अप्रत्यक्ष कहिए, समाज ने आपकी परवरिश में बहुत कुछ दिया है, लेकिन आपसे लिया कुछ नहीं है। ये वॉलंटरी है। सोसाइटी आपसे कुछ लेती नहीं है। हमारी भी जिम्मेदारी पैरेलली सिमिलरली बनती है कि हम भी अपनी तरफ से जब भी अवसर आए, ये अवसर हमको पहचानना होता है कि हमारे पास ऐसा अवसर कब आया जब हम समाज के प्रति कुछ कर सकते थे या दूसरों के प्रति कुछ कर सकते थे, तब आप सच्चे वॉलंटियर हैं। मैंने फिर से कहा, मैं फिर कहता हूं, हम लोग लाइफ टाइम वॉलंटियर हैं। और जब हम किसी काम को वॉलंटरी करने की ठानते हैं या हम सोचते हैं कि मुझे इस क्षेत्र में या इस डायरेक्शन में या इसके लिए कुछ काम करना है और उसके बदले में कुछ चाहिए नहीं, वॉलंटरी का मतलब ही होता है कि हम जताएं नहीं किसी को भी कि हमने क्या किया, या सामने वाला ऐसा एहसान मान के साष्टांग ना हो जाए आपके सामने कि आपने उसके लिए बहुत कुछ किया है। मैं चाहता हूं कि जब हम विजन और इनोवेशन की बात करें वॉलंटरी में, तो हम एक चीज जरूर सोचें, समझें कि ये हमको ट्रेडिशनली मिला है। कोई नया काम हम करने नहीं जा रहे, हम वही कर रहे हैं जो पहले से लोगों ने हमें सिखाया है, कहीं से हमें प्रेरणा मिली है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं विजन का। मतलब वॉलंटरी, जब हम वॉलंटरी कुछ करने की सोचते हैं तो हमें विजन कहाँ से मिलता है। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो स्वयं प्रेरणा से ही कुछ नया करने की सोचते हैं और उस तरफ जुट जाते हैं और तब तक नहीं रुकते जब तक वो काम पूरा हो नहीं जाता, जैसा स्वामी विवेकानंद जी ने कहा भी था। अधिकतर लोग वो होते हैं जब सामने से कोई प्रेरणा मिलती है, कोई हमको दिखाता है कि ये एग्जाम्पल है, ऐसा सेट एग्जाम्पल कोई हमको पेश करता है, उसमें से हम प्रेरणा लेते हैं, तब हम इंस्पायर होते हैं कुछ करने के लिए। आपको मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। एक रेडियो चैनल है, रेडियो उड़ान। शायद आप लोगों ने नाम नहीं सुना होगा, मैं जानता हूं। ये रेडियो उड़ान एक चैनल है जो लोग विजुअली इंपेयर्ड हैं, दृष्टिबाधित जो लोग हैं, ये उन लोगों ने बनाया है। इसके पीछे कारण ये था, इसके पीछे विजन ये था कि जब रेडियो पर या मेन स्ट्रीम मीडिया में कोई बहुत ज्यादा डिसेबिलिटी रिलेटेड न्यूज नहीं आती थी, या फिर ऐसा कहें कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है जहां पर बहुत सारे लोगों को प्लेटफॉर्म मिलता है लेकिन डिसेबल्ड लोग उसमें से वंचित रह जाते हैं, उन ऐसे लोगों के लिए रेडियो उड़ान
शुरू किया गया। और जो रेडियो उड़ान शुरू किया वो विजुअली इम्पेयर्ड ही हैं सारे, इनकी बहुत बड़ी टीम है जो पूरे देश में काम करती है, लेकिन वो जो पूरे टीम मेंबर्स हैं वो आज तक कभी एक दूसरे से मिले ही नहीं। वो स्काइप पर आते हैं या ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में आते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस में आते हैं, वहीं पर बातचीत करके वहीं सेट करते हैं कि हमें आगे का क्या काम करना है। आज तक वो फिजिकली कभी एक दूसरे से नहीं मिले हैं। तो इतना बड़ा काम, और ये सब वॉलंटरी करते हैं। सभी लोग अलग अलग फील्ड में जॉब करते हैं, सभी लोग अपने अपने काम धंधे में जाते हैं, पेशा करते हैं, लेकिन जब समय मिलता है तो रेडियो उड़ान को भी लिए भी अपना काम करते हैं। ये रेडियो उड़ान कहीं कमर्शियल नहीं है, कहीं से पैसा जुटाता नहीं है और कहीं से पैसा इनको सैलरी नहीं मिलती है। ये अपनी जेब से, अपने पॉकेट से इसमें पैसा लगाते हैं और डिसेबल्ड कम्युनिटी के लिए डेडिकेटेड है। तो रेडियो किसी कभी भी ऐसे नहीं हो सकता जिसमें हम बदले की भावना में कुछ किया जाए। ये प्योरली डेडिकेटेड है, प्योरली वॉलंटरी है। विजन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम एक डिफरेंट सोचने की स्किल हमको आती हो। यदि हम ऐसी एबिलिटी डेवलप कर पाते हैं जहाँ पे हम डिफरेंटली सोचते हैं, तब हम दूसरों, जो सामान्य लोग हैं, जो एक चले बने बनाए रास्ते पर चल रहे हैं, उनसे अलग। मैं समझता हूँ कि जब आपको सोते जागते उठते बैठते एक ही ख्याल आता हो, जो आपका गोल है, जो आपका एम है, जो आप वॉलंटरी करने की सोच रहे हैं, तब आपके दिमाग में नए नए ख्याल बनेंगे जब आप उसके लिए कॉन्स्टेंटली सोच रहे हैं। आपके दिमाग में कभी कोई विचार आता है तो मैं आपको वो शेयर करना चाहिए किसी के साथ। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ नया सोच पाते हैं लेकिन हम उसको शेयर नहीं कर पाते किसी के साथ। इसका मतलब है आपने उस विचार हत्या कर दिया, आपने उस विचार को मार दिया, आप तक आया और आपने अपने अंदर ही उसको दफन कर दिया। जब तक आप उसको दूसरे के साथ शेयर नहीं करेंगे तब तक वो पॉलिश नहीं होगा, तब तक वो फर्निश नहीं होगा, तब तक उसके अंदर नयापन नहीं आएगा। आप ऐसा मत समझिए कि हम ऐसा समझ लेते कि जो मैंने सोचा है वो परफेक्ट ही होगा। ऐसा नहीं होता है। हम लोगों को अपने थॉट्स को शेयर करना सीखना चाहिए। दूसरे तक हम अपने थॉट पहुंचाएंगे तो उसके अंदर क्लैरिटी आएगी। और जितना बड़ा विचार हम सोचेंगे, जितना बड़ा हम गोल तय करेंगे, उतने ही बड़े एफर्ट भी हम लगा पाएंगे। हम जितने छोटे छोटे गोल तय करें, गोल बड़ा तय करने का मतलब ये नहीं कि हम छलांग मार देंगे, हमको छोटे छोटे स्टेप लेने हैं उसको अचीव करने के लिए। लेकिन जितना बड़ा गोल हम फाइनल करते हैं, सेट करते हैं, उतने बड़े एफर्ट्स हम लगाने की सोच पाते हैं। ये हमारा विजन है। लेकिन जब तक विजन इनोवेटिव नहीं होगा, जब तक विजन में नयापन नहीं होगा, जब तक वो कुछ अलग नहीं होगा दूसरों से, तब तक आपको एक एस्टैब्लिशमेंट नहीं मिलेगी, तब तक आपको एक रिकॉग्निशन नहीं मिलेगी। वॉलंटरी कुछ भी, जब हम कुछ काम करते हैं, हम अभी तक जो एग्जांपल्स हम लोगों ने, जैसे अभी हम डायरेक्टर सर बता, हम प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं या ब्लड डोनेशन कैंप लगा सकते हैं, या फिर अभी हमारे वेदा व्यास सर ने भी बताया कि हम ऐसा भी कुछ कर सकते हैं जब हम किसी को पढ़ाने जाते हैं वॉलंटरी, किसी विजुअली इम्पेयर्ड स्कूल में हम पढ़ाने गए, या किसी ऐसी सोसाइटी में एनजीओ के थ्रू हम पढ़ाने गए जहाँ बच्चे गरीब हैं, या स्लम्स में हम पढ़ाने जाते हैं। यदि हम इसको कंटिन्यू कर सके, तब वास्तव में हम जब वॉलंटरी काम कर रहे हैं उसका एक मकसद होता है, उसका एक मोटो होता है कि हम कुछ चेंज लाना चाहते हैं, हम कुछ जो वर्तमान में जो स्थिति है हम उसमें कुछ बदलाव देखना चाहते हैं। तो सर्विस 2 बार गए, पढ़ाया और हम चाहेंगे कि उसमें कोई चेंज देखने को मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। हमको वो लगातार करना पड़ेगा, और तब तक करना पड़ेगा जब तक हम खुद सेटिस्फाइड नहीं हो जाते कि हाँ, सामने बदलाव जैसा मैं चाहता था वैसा बदलाव देखने को मिल रहा है, या सामने वाले के अंदर कैपेसिटी बिल्डिंग हो रही है, उसका भी डेवलपमेंट समान रूप से हो रहा है। आपको मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ। मैंने अभी कहा कि जब तक हम दिन रात, मतलब हमेशा हमारे दिमाग में वो थॉट प्रोसेस कंटिन्यू ही नहीं चलता रहता, तब तक हम उसके अंदर जिम्मेदारी की तरह काम नहीं कर सकते। वॉलंटरी काम में हमें कुछ मिल नहीं रहा, जब तक हम उसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे, जब तक हम उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बना लेंगे, तब तक हम उसके लिए सोचेंगे नहीं, हमारा दिमाग उस पर काम पे नहीं लगेगा। हमें अपने दिमाग को उस काम पर, उसके काम पर लगाना है। आज जिनके नाम पर हम इंजीनियर्स डे मनाते हैं, इंजीनियर दिवस 14 सितंबर के दिन बनता है वो दिवस, उनका नाम है एम विश्वेश्वरैया। कितना डीप सोचते थे और कितना सोचते थे वो, उनकी एक स्टोरी से पता लगता है। एक बार, और वो कितना डेडिकेटेड थे अपने काम के लिए। एक बार वो रेल में सफर कर रहे हैं और
तो शाम का समय हुआ और वो सो गए। जब अपनी बर्थ पर वो सो रहे थे और आसपास और भी लोग थे जो बैठे थे, सो रहे थे, अचानक से वो विश्वेश्वरैया जी उठे और उन्होंने चेन, जो ट्रेन को रोकने वाली चेन होती है, वो खींच दी, वो पुल कर दिया। और चैन खींचने के बाद ट्रेन रुक गई धीरे थोड़ा आगे जाकर के। और ऐसी कोई जगह नहीं थी या ऐसी कोई वजह लोगों को दिख नहीं रही थी कि जिसके कारण चेन को रोका या चेन को पुल किया जाए और ट्रेन को रोका जाए। सभी लोग गुस्सा करने लगे कि भाई तुमने ट्रेन क्यों रोक दी। तो विश्वेश्वरैया जी उठे और उन्होंने जो तर्क दिया, जो लॉजिक बताया या जो रीजन बताया, वो ये था कि यदि मैं ट्रेन को नहीं खींचता तो आगे बहुत बड़ा हादसा हो जाता। लोगों को लगा कि तू अंतर्यामी तो है नहीं कि यहाँ बैठे बैठे सोते सोते तुम्हें सपना आया और तुमने चेन खींच दिया। तो बोले नहीं, मैं ठीक बोल रहा हूँ, आगे कुछ दूरी पर ट्रेन की पटरी टूटी हुई है और यदि वो ट्रेन वहां से गुजरती तो शायद ट्रेन का बड़ा हादसा हो सकता था। लोगों को यकीन नहीं हुआ, लोग ट्रेन से उतरे और वो थोड़ा दूर पर ट्रेन पटरी देखने के लिए। तो वास्तव में आगे जाकर वापस आए लोग और विश्वेश्वरैया जी से पूछा कि आप तो बर्थ में सो रहे थे, आपको कैसे मालूम पड़ा कि आगे पटरी टूटी हुई है। विश्वेश्वरैया जी ने कहा, मतलब आदमी का दिमाग कितना काम करता है। उन्होंने जवाब दिया, Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir, you are audible. So you're audible in some part it Yeah. is cracking. थोड़ा सा transmission में problem है, but थोड़ा you're कभी audible. कभार हो रहा है हल्का सा। विश्वेश्वरैया जी ने जवाब दिया, जब मैं सो रहा था तो जब हम बहुत दूर थे, ट्रेन टूटी हुई पटरी से हम जब दूर थे तो ट्रेन के चलने की आवाज कुछ और थी, लेकिन जैसे जैसे हम उसके पास आते गए ट्रेन के पटरी से जोड़कर चलने की आवाज कुछ बदलती गई। तो मुझे अंदाजा हुआ कि शायद आगे कुछ गड़बड़ है, आगे कुछ कमी है, ट्रेन की पटरी टूटी हो सकती है। और वो व्यक्ति आगे जाकर के भारत का सबसे बड़ा इंजीनियर बना और आज हम उनके नाम पर इंजीनियर दिवस मनाते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि बहुत सारे काम दुनिया में या भारत में तो हम देखते हैं, दुनिया में बहुत सारे काम जो बड़े बड़े काम हुए हैं वो वॉलंटरी हुए हैं। उनकी शुरुआत वॉलंटरी हुई थी, किसी ने उनको कुछ दिया नहीं था करने के लिए और ना उन्होंने किसी अपेक्षा के साथ वो शुरू किया था। बस उन्होंने शुरू किया था कि वो क्षेत्र उनको दिख रहा है जहां पे कुछ कमी है या डेवलपमेंट नहीं हुआ है या फिर उनकी जरूरत है, वो काम उन्होंने शुरू किया और लंबे समय तक उसको करते रहे जब तक उनको बदलाव नहीं दिखा। और आज वो सफल, हो सकता है वो सफल बिजनेसमैन हो, सफल एंटरप्रेन्योर हो या सफल वॉलंटियर हो, लेकिन सारे काम वॉलंटरी शुरू किए गए थे। एक लॉ होता है, लॉ ऑफ नेचर, या हम उसको प्रिंसिपल ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं। मैं एक बात मानता हूं और बहुत अच्छे से मानता हूं, प्रकृति, ये जो नेचर है, ये जो हम उसको ईश्वर भी बोलते हैं, गॉड भी बोलते हैं, नेचर बोलते हैं, प्रकृति बोलते हैं, ये जो प्रकृति है वो आप तक केवल वही काम पहुंचाएगी जो आप कर सकते हैं। बस हमारे अंदर काबिलियत ये होनी चाहिए कि उस काम को और उस अवसर को हम पहचान सके कि ये काम मेरे लिए बना है। एक और बात, जब तक किसी काम को हम बहुत गहराई में जाकर के नहीं सोच, Hello, Gulshan sir. हेलो Hello. Gulshan, you're not audible. I think again he has a connectivity problem. Yes, he's facing some internet issues. Yes. हेलो Yes. जी sir. Sir, continue. जी, जब तक हम अपनी लर्निंग स्किल्स के अंदर इनोवेशन नहीं रखेंगे या उसके अंदर नयापन नहीं लाएंगे और चीजें धीरे धीरे जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि जब तक जैसे जैसे वर्ल्ड डेवलप कर रहा है, जैसे जैसे नए लोग आ रहे हैं, वैसे वैसे हमें अपनी लर्निंग स्किल्स में और अपनी नॉलेज में भी इनोवेशन लाना पड़ेगा। हमें धीरे धीरे उसको बढ़ाना पड़ेगा और बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका होता है, दो तरीके होते हैं। या तो आप उससे जुड़ा हुआ लिटरेचर पढ़िए, यानी कि जो, और आपको किताबें बहुत कुछ सिखाती हैं। यदि आपके अंदर हैबिट है
पढ़ने की, तो मैं चाहूंगा आप इसको जिंदा रखें, मरते दम तक जिंदा रखें। और वॉलंटरी स्किल्स आपको किताबें बहुत अच्छी तरह सिखाती हैं। हाँ, ये जरूर है कि आप क्या पढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध कह गए हैं कि हम 5 साल में बोलना तो सीख जाते हैं, लेकिन उम्र भर ये नहीं सीख पाते कि क्या बोलना है। हम किताबें पढ़ना तो सीख जाएंगे, लेकिन कौन सी किताबें पढ़नी है, क्या लिटरेचर पढ़ना है, ये हम नहीं सीख पाते। तो इसकी तरफ जरूर ध्यान दें कि हम क्या पढ़ें, क्योंकि इसके पीछे एक रीजन है। इसके पीछे रीजन ये है कि जब आप आप अपनी लाइफ लगा रहे हैं किसी काम के पीछे, आप चाहते हैं कि जो मैं काम कर रहा हूं वो ठीक है, बहुत बड़ी रिकॉग्निशन नहीं मिलेगी, लेकिन सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। तो अल्टीमेट आखिरी में जाकर के आपको वो आत्मसंतुष्टि भी नहीं मिलती, तो आपने अपने बहुत सारा समय आया है वो, लेकिन एक पॉजिटिव आउटकम, पॉजिटिव रिजल्ट आप चाहते हैं, तो इसके लिए जरूरी है कि आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप अपनी एनर्जी, अपना टाइम आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसकी तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी। और ये पैरेलल चलना चाहिए, आपकी एक्टिविटी और आपकी नॉलेज दोनों में कोई मिलान होना चाहिए। कोशिश करिए कि और हम कुछ लोग ऐसे हैं जो इसकी ये जिंदा रखते हैं इस स्किल को अपने अंदर। यदि कई बार होता है हम पूरे समय, पूरे दिन कहीं व्यस्त रहते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि जब सोने वाले हैं, जब हम सोने जाते हैं, उस समय कुछ ऐसा पढ़ के सोएं जिसके ऊपर दिमाग हमारा काम करे। हम बॉडी सोती है लेकिन दिमाग नहीं सोता है। आपका दिमाग उस थॉट पे काम कर रहा होता है जो आपने लास्ट 1 आवर में गेन किया होता है। आप ऐसा थॉट, ऐसा एक इमेज दिमाग में बना के सोइए जिसके ऊपर दिमाग रात भर काम करे, और आप देखेंगे कि अगले दिन सुबह अचानक से आपको दिमाग में कोई नया थॉट जनरेट होगा। वो थॉट आपका है। आपने जो पढ़ा वो किताबी था, वो किसी और का थॉट था, लेकिन उस थॉट से इंस्पायर होकर के आपके दिमाग ने उसके ऊपर काम किया और आपको एक नया थॉट जनरेट करके दिया। वास्तव में नए थॉट्स ऐसे ही जनरेट होते हैं जब आप उसके ऊपर लॉन्ग टर्म सोचते हैं, लॉन्ग टाइम सोचते हैं। दशरथ मांझी का उदाहरण हम सब लोग जानते हैं। फिल्म यदि वो आदमी ने वो पहाड़ नहीं खोदा होता तो आज भी उन लोगों को लगभग 11 किलोमीटर में पहुंच जाते हैं। वॉलंटरी टास्क लेने के लिए आपको बहुत हेलो सर, आपकी आवाज बीच में कट रही है। हेलो जी सर, सर बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ सर, अभी आ रही है जी। हमें वॉलंटियर के लिए बहुत पेशेंस। अब मैं करता हूँ, बाद में हमको क्वेश्चन ले वॉलंटियर किएगा, और ये केवल वॉलंटियर बनने के लिए नहीं। हेलो जी, ये सभी के काम की चीज है, हमारे भी काम की चीज है, लेकिन वॉलंटियर बनते समय हमको ये जरूर ध्यान में रखना चाहिए किस काम की इंपॉर्टेंस है और किस काम की अर्जेंस है। हमको इंपॉर्टेंट काम में और अर्जेंट काम में डिफरेंस करना सीखना चाहिए। अर्जेंट काम कोई अचानक में हड़बड़ी में आया और आपको बोला कि ये काम करना है, वो अर्जेंट है। इंपॉर्टेंट काम आप तय करते हैं कि कौन सा काम इंपॉर्टेंट है, और आप उसके लिए टाइम भी तय करते हैं कि मुझे इतने टाइम पीरियड में इस काम को कंप्लीट कर लेना है। मेरी एक रिक्वेस्ट है सभी से, इंपॉर्टेंट काम को अर्जेंट मत बनाइए। इंपॉर्टेंट काम टाइम, आप जब तक आप उस काम को करने के लिए टाइम नहीं देंगे, प्रॉपर टाइम नहीं देंगे, जो एडिक्वेट टाइम उसकी रिक्वायरमेंट है वो नहीं देंगे, वो काम अच्छे से नहीं होगा। इसलिए काम को इंपॉर्टेंट बनाइए। आप अपनी प्राइमरी लिस्ट बनाइए कि आपका प्राइमरी काम कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा है, उसकी लिस्ट बना सकते हैं, उसमें इंपॉर्टेंस फिक्स कर सकते हैं। किसी इंपॉर्टेंट काम को आप अर्जेंट बना देंगे, वो आपके लिए भी घातक होगा और उसका कोई आउटकम पॉजिटिव भी नहीं मिलेगा। दोनों में फर्क है। लास्ट पॉइंट, कल हम बहुत सारी बातें डिस्कस करेंगे। मैं चाहता हूं जब हम वॉलंटियरी कुछ करना चाहते हैं तो 3 चीजें, ये 3 ऑटो चीजें हैं जो हमको अपने में फिट कर लेनी चाहिए अंदर। हर आदमी के अंदर ये 3 चीजें होनी ही चाहिए, तब शायद वो जाकर के
उसको एफर्ट नहीं करना पड़ेगा उसके लिए, वो अपने आप होने लगेगी अंदर से। ये 3 चीजें हैं। पहला चीज है ऑटो फिल्टर। हमारे पास कई डायरेक्शन से थॉट्स आते हैं, कई डायरेक्शन आते हैं, सारे समाज में लोग होते रहते हैं, और जब हम बहुत सारी चीजें इंफॉर्मेशन गेन कर रहे होते हैं तो जरूरी नहीं है कि मिठाई की दुकान पर जब हम जाएंगे तो किसी भी तरह की मिठाई आएगी। हाँ, चूज, आप अपने माइंड पर लगाइए। मैं चाहता हूं आप हम ऑटो फिल्टर फिट करें अपने अंदर कि सामने से कोई भी चीज आएगी वो मैं कंज्यूम नहीं करूंगा, मैं वो ही लूंगा मुझे ऑटो फिल्टर लगाना चाहिए। कई बार नेगेटिव थॉट्स, कई आशा आती है। सर ने बताया अभी कि हम करने में जुटते हैं 3 बार, तो बाद में हमको जब पॉजिटिव इफेक्ट या नजर नहीं आता तो जाते हैं। आपको वास्तव परेशानी आई, आप उसके पार देखेंगे तो आपको आपका जो है वो दिखता। इसलिए आप ऑटो फिल्टर लगाइए। नेगेटिव चीजें आपके कामराजी पसंद आप नहीं देंगे। सेकंड इज ऑटो सजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इतने हुए हैं, बड़े हम हुए, और जितनी चीजें हम की हैं वो सब बाहर से आई हैं। हमने अपने आप बहुत कम चीजें की हैं, ये सबको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। आप अपने आप सीखिए, नहीं होता है, आपने इंस्पिरेशन ली होगी। तो ऐसे में कई बार नेगेटिव इंस्पिरेशंस भी आती हैं, कई बार नेगेटिव बिल्डिंग भी बन जाती है आपके दिमाग में, या थॉट्स को लेकर के, या फिर किसी के बारे में कोई इमेज को लेकर के। मैं चाहता हूं यदि आप चाहते हो कि आपको अपने काम में आगे बढ़ना है तो आप अपने आप को सजेशन देना शुरू करिए। दूसरे सजेशन मांगने की जरूरत नहीं है। जरूरी नहीं है आपको आकर के पॉजिटिव सजेशन ही देगा या आपको वो बेहतरी ही चाहेगा। ये सामने से नहीं मिल रहा है, आप अपनी बॉडी में एक ऑटो सजेशन लगाइए, वो आपको सजेस्ट करेगा, आपके अकॉर्डिंग सजेस्ट करेगा। आपसे ज्यादा, उससे ज्यादा शुभचिंतक आपका कोई नहीं होगा। आप अपने अंदर एक ऑटो सजेशन लगाइए, और ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, मैंने देखा है, हम भी हैं उसमें से, हमने देखा ही नहीं है, ऐसे बहुत लोग उसको इंस्पायर नहीं किया जाएगा तब तक वो मोटिवेट हुए बिना काम ही नहीं करते, उनको चार्ज करना पड़ता है। आप ऑटो चार्ज होइए अपने सजेशन के थ्रू। लास्ट पॉइंट, इसका तीसरा पॉइंट है, आप अपने अंदर एक ऑटो अलार्म लगाइए। सर अभी कुछ बातें कर रहे थे, मैं चाहता हूं उन बातों पे अमल करना है ना, तो आपको ऑटो अलार्म लगाना पड़ेगा। कई बार होता है कि हम, मान लीजिए हम स्कूल जाना है हमको, या कॉलेज जाना है, या हम लोगों को ऑफिस आना है, हम सुबह का अलार्म लगाते हैं जब हमें ऑफिस आना है, क्योंकि हमारा डेली का काम है ना। हम अलार्म लगाते हैं कि हम समय पर उठें, लेकिन अलार्म बंद करके फिर सोते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हमें बाहर जाना है, फैमिली में तय हुआ कि हम कल पिकनिक जाएंगे या कहीं घूमने जाएंगे, या फिर कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम है, शादी है, हम अलार्म लगाते हैं। और मैं दावे से कह रहा हूं, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे अलार्म बजने से पहले उठ जाते होंगे। आप अपने अंदर गुलशन जी, हेलो, गुलशन जी आप ऑडिबल नहीं है। आवाज आ रही है क्या? नहीं, आप ऑडिबल नहीं थे, काफी आपकी आवाज ब्रेक हो रहा था काफी। अगर आप कहीं, अभी आ रही है? हाँ अभी आवाज आ रहा है। अगर आप कमरे में हैं, रूम में हैं, तो आप बाहर भी आ सकते हैं। अभी आवाज नहीं आ रही है आपकी आवाज, बहुत ब्रेक हो रहा है आपका आवाज। हाँ गुलशन, नथिंग इज ऑडिबल पॉसिबली। आवाज आ रही है? नहीं, बिल्कुल ऑडिबल नहीं है आपकी। सर आपके सिग्नल्स शायद बहुत वीक हैं। हाँ, आप किसी ऐसी जगह पे आइए जहां आपके सिग्नल स्ट्रांग होंगे। ठीक है, मैं आता हूँ। Also, then we must, while Gulshan is there, Deepali, can you hear me, Yes. please? So, Yes, sir. what do you suggest now? कि अभी Yes, जो है sir. If time you हो रहा allow है, me, then we have few questions
कुछ या सवाल हैं जो पार्टिसिपेंट्स ने बिल्कुल यहाँ रखे हैं, बिल्कुल। तो अगर आप देन ये कम्युनिकेशन वाला और ऑनलाइन वॉलंटियरिंग कल हम क्विकली खत्म कर देंगे, क्योंकि मेरे को लगा कि फाउंडेशन थोड़ा सा जी बेहतर दिया, तो जी दूसरे जो एस्पेक्ट्स है उसको हम जल्दी से कल 4-5 चीजों को 1-1.5 जी घंटे में निपटा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं जी है। तो हाँ, इसके अ, बाद फिर हम क्वेश्चंस, जी अभी जी गुलशन सर, नहीं आया गुलशन तो सर आपका लास्ट पॉइंट आवाज रह गया था। आवाज आ रही है? हाँ सर, अभी आवाज आ रही है सर, आप जी हाँ, बस अपना लास्ट मेरा कंक्लूड कर प्लीज। सकते हैं, उसके बाद हम या सवाल लेंगे। या बहुत देर हो गई है। जी जी लास्ट पॉइंट, पहला मैंने बताया ऑटो फिल्टर, सेकंड इज ऑटो सजेशन एंड थर्ड इज ऑटो अलार्म। आपको ऑटो रिमाइंडर फिट करना चाहिए अपने अंदर, जब भी आपको जरूरत हो आप पहले से रेडी हो, पहले से प्रिपेयर हो, पहले से चार्म्ड हो, पहले से चार्ज्ड हो। ये 3 बातें, कुछ बातें मुझे कहनी थी। कल हम और भी बातें करेंगे, जैसे टीम बिल्डिंग पर बात करेंगे, हम लीडरशिप स्किल्स पर बात करेंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स पर बात करेंगे। अभी मैं देख रहा हूँ चैट बॉक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं, तो जी आई विल सर, रिक्वेस्ट मैं मॉडरेटर। कुछ सवाल हाँ जो अभी चैट बॉक्स में आए हैं, तो जी हम कुछ सवाल लेते हैं। पहला सवाल जो आया है वो सुरभि चौधरी जी का है, and she's trying to say that empathy is one of the most essential part of volunteerism, but at the same time there are some constraints. For example, challenge of being a woman. So how do you address such challenges when you have full empathy and when you यस यस। सो आई are विल, fully prepared and वेदा ready जी to आप बोल रहे हैं? volunteer, but when there are some हाँ हाँ, constraints, some यस societal यस, constraints which comes up? I will go purely uh, by my own experiences of the challenges. Of जी course, जो जी एक सर volunteer है, unless and until she or he are actually empathetic or not able to develop empathetic connection with the community or the group with which they want to volunteer, तो वो volunteering proper successful नहीं हो सकता है। मगर challenges तो हैं, इन द सेंस कि लाइफ में अलग अलग जब हम काम करने जाते हैं तो चैलेंजेस होता है। मान लीजिए आप किसी एरिया में एकदम बैकवर्ड रीजन में जाके आप काम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक तो वो वहाँ पे एक्सेसिबिलिटी एक मेजर इशू हो जाता है, फिर रिसोर्सेस इज अ मेजर प्रॉब्लम, देन स्टीरियोटाइप्स, कल्चरल स्टीरियोटाइप्स, अगेन ट्रेडिशंस। मैं आपको एग्जांपल दूंगा एक बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि एक हमारा वॉलंटियर थी शिवानी करके, शिवानी राठी। वो 3rd ईयर के एग्जाम के बाद वो रामजस कॉलेज में पढ़ती थी, तो वो अभी इनफैक्ट मुंबई में है। तो अब वो काफ़ी साल पहले, अराउंड 2010-11 की बात है, तो वो 11-12 की बात है शायद, तो वो आई अपने ऑफिस में गांधी दर्शन में, और उसने कहा कि मेरे को अभी 3rd ईयर हो गया है, तो रिजल्ट आने के पहले तक मेरे को वॉलंटियरिंग करना है। क्योंकि सुरभि जी ने बोला एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन टर्म्स ऑफ चैलेंजेस, एंड दैट टू मेरे को लगता है उन्होंने लिखा कि इन टर्म्स ऑफ वुमेन, और उसमें जो इश्यूज चैलेंजेस बिफोर वुमेन। तो शिवानी ने मेरे को कहा कि सर मेरे को ऐसे ही किसी आप इंस्टीट्यूशन या ग्रुप्स में डाल दी, कांटेक्ट करवा देंगे और मैं जाके मैं वॉलंटियरिंग करूंगी, तो दैट आई डोंट वांट, आई वांट वेरी वेरी चैलेंजिंग वर्क टू बी डन। तो ये तो बड़ा टफ था। तो अपना एक फ्रेंड है, शी इज वर्किंग विद उस समय यूनाइटेड नेशंस वॉलंटियर्स के नेशनल कोऑर्डिनेटर थी, और अमिता दाहिया। तो अमिता ने से मैंने बात किया, तो अमिता ने कहा कि वो मेवात में, आप लोगों को सबको पता है मेवात में जो वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री हरियाणा में ही है, तो वहां पे जाके करना चाहेगी क्या। तो देन आई स्पोक टू शिवानी। तो एक दिन मैं, अमिता, शिवानी और एक एनसीईआरटी के प्रोफेसर, हम गए अपने व्हीकल में और मेवात में एक्सप्लोर करने की कोशिश किया। तो एक्चुअली कोई, आई एम टॉकिंग अबाउट द चैलेंजेस, वहां पे एज सच कोई कॉन्टैक्ट्स थे नहीं। देन वी स्टार्टेड टॉकिंग टू द विलेजर्स एंड ऑल, कई गांव में गए, करीबन 7-8 गांव, 3-4 गांव में गए, एंड वी realized one of the biggest problem in one of those villages was कि जो स्कूल था उसमें जो है उसमें पता लगा कि स्कूल के बच्चे भी और टीचर्स भी दोनों एक दूसरे को गाली गलौज से ही बात करते थे। तो उसने कहा कि मेरे को ऐसे ये काम करना है। तो चैलेंज बिफोर हर, शी इज अ गर्ल, यंग गर्ल who has just given her graduation examination, एक बिल्कुल ही अननोन एरिया, अननोन विलेज में, जिसमें हमको कहीं दूर दूर तक किसी को जानते नहीं है। तो वहां पे जाके
एक फिर stereotypes, cultural differences. She's from Delhi and you can say Mewat, a really backward region. तो there was a big disconnect. मगर उसने सोचा कि नहीं, मेरे को तो काम करना है. तो फिर हमने एक विलेजर गांव वालों को, एक परिवार को हमने कन्विंस किया, एंड देन शी स्टार्टेड स्टेइंग विद दैट फैमिली फ्री ऑफ कॉस्ट. उन्होंने वो फैमिली ने कहा ठीक है, आप हमारे बच्चों के साथ काम करना चाहते हैं तो कीजिए. मगर मेरा और अमिता के दिमाग में हर समय टेंशन होता था कि भाई वो वहां पे गई है और वो क्या है, सिक्योरिटी इशू एज अ गर्ल क्या हो सकता है एंड ऑल. तो मैं ये कह रहा हूँ कि चैलेंजेस बहुत हो सकते हैं, बिल्कुल देयर विल बी लॉट ऑफ चैलेंजेस इफ यू वांट टू टेक अप सम वॉलंटियरिंग वर्क व्हिच इज चैलेंजिंग, बट द इंजेन्युइटी लाइज इन कि कैसे आप उस चैलेंजेस को ओवरकम करके कैसे हम काम करें. एंड आई थिंक शिवानी, मैं जब भी कोई वॉलंटियरिंग, जैसे फिजिकल फॉर्म में भी गांधी स्मृति लगातार वॉलंटियरिंग का वर्कशॉप करती है, और मैं हर जगह शिवानी का एग्जांपल देता हूँ कि दैट वाज अ रियली पावरफुल एग्जांपल ऑफ अ यंग गर्ल फ्रॉम दिल्ली, वेल from you can say Delhi girl who decides to go and work in a community which is totally backward, and the very fact that there was no connection with that whole community to establish trust. जो मैंने बात किया, traits and all those things का effective volunteer, establish trust, flexible objectives, सब चीजें उसमें वो लागू होते थे, and the risk factor that was there, अपना जान हथेली में लेके काम करना. So that was quite an amazing experience for all of us when she was working there. Next, please. Sir, there is a question by Sonia Budhwar. What do I need to think about before I decide to volunteer? I think all of these have been covered, but you can still address this question. Okay. तो basically for Sonia, this is a question जो सभी जो यंग स्टूडेंट्स हैं जो वॉलंटियर करना चाहते हैं सभी के दिमाग में आता है. इनफैक्ट जब हमने स्टडी किया और उसमें पाया almost 70% of the students, except possibly those from disciplines like social work and all, most of the students find it bit challenging कि हमको करना क्या है. वो करना तो चाहते हैं वॉलंटियरिंग, मगर कहाँ जाना है, कैसे करना है, किसके साथ बात करना है, किस फॉर्म में करना है वॉलंटियरिंग, वो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं रहती है, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स रहता है. तो when we are thinking of volunteering, what is your passion? If you are passionate towards environment, if you are passionate towards health, कैसे आप उस विषय में, then you have to do some research and reality check कि आपके एरिया में क्या क्या ग्रुप्स है और आप क्या काम कर सकते हैं. और आप खुद वॉलंटियर करना चाहते हैं तो यू हैव टू फॉर्म अ टीम एंड देन ट्राई टू सी बिफोर गोइंग एंड जिसको कहते हैं आप कूद गए अपने इनिशिएटिव में, आपको प्रॉपर रिसर्च करना पड़ेगा कि वो इशू क्या है, क्या क्या चीज़ें हमको एड्रेस करना है, क्या हमारा ऑब्जेक्टिव्स है. कंप्लीटली प्रॉपर रिसर्च करके हमें जाके वॉलंटियर करने से हमको ज़्यादा सक्सेस मिलने की ज़्यादा उम्मीद हो सकता है. थैंक यू सर. एक सवाल आया है पूनम कौशिक जी का. शी इज आस्किंग हाउ कैन अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय कैन वॉलंटियर, एंड शी इज आस्किंग इज इट अ रेलेवेंट क्वेश्चन आल्सो और नॉट. नहीं, डेफिनेटली इट इज अ रेलेवेंट क्वेश्चन. एज गुलशन ने तो कहा ही है कि आप अपने लाइफ में हर समय वॉलंटियर है ना, तो आपको मान लीजिए किसी को ब्लड चाहिए और या आपके नेबरहुड में किसी को कुछ प्रॉब्लम हो गया है तो आप चले गए, तो देयर इज नो बाइंडिंग कि आप किसी को हेल्प नहीं कर सकते हैं. तो आप बिल्कुल. और जी एक बात और मुझे इसमें जोड़नी है जी. हमको ये नहीं गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, आपको अपने घर से उठ करके कहीं जाना पड़ेगा आपकी नौकरी करने के लिए, आपकी जॉब करने के लिए. वॉलंटियर्स को ये बहुत हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वॉलंटरी वर्क करने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है. आपके आसपास आपके समय जहाँ पे जब आपको दिखता है वहां पर आप उस काम को कर दीजिए. वॉलंटरी वर्क आप पैसा नहीं लगा के कर सकते, आप कहीं बहुत दूर जाके नहीं कर सकते. आपको उसमें अपना टाइम, एनर्जी, प्लेस सब कुछ देखना है. जी सर. एनी अदर क्वेश्चन? जी सर, एक क्वेश्चन और है कि विनीत कौशिक जी का,
कि कैसे स्थिति पहचाने कि यहाँ हम समाज के लिए कुछ कर सकते हैं, कैसे इसे पहचाने, हाउ डू वी आइडेंटिफाई दैट समथिंग हैज टू बी डन फॉर दी सोसाइटी? दिस इज लाइक बेसिकली जहाँ पे भी, जैसे आप जहाँ पे रहते हैं, तो आइडिया इज टू फाइंड आउट, आप जब सोशली कनेक्टेड हैं तो आपको लगातार कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ ना कुछ आइडिया रहता है कि आपको आपके एरिया में क्या क्या इश्यूज है। हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी का, हो सकता है पानी का इशू है कि आप कैसे अवेयरनेस कैंपेन शुरू कर सकते हैं कि पानी का कम से कम इस्तेमाल करें, बेवजह पानी को फेंके ना। तो इस तरह के आइडियाज, जब आप सोशली कनेक्टेड हैं, बिकॉज वी आर ऑल सोशल एनिमल्स, तो जब हम सोशली कनेक्टेड हैं हमें कुछ ना कुछ तो आइडिया लग ही जाता है एज ह्यूमन बींग्स की यहाँ पे क्या हो सकता है और क्या काम कर सकते हैं। तो इन दैट कंटेक्स्ट फिर हमको वो आइडिया जब मिल जाता है तो हम जाके कुछ ना कुछ, ये नहीं कि हर समय आपको एक ग्रुप बनाना है, ये करना है, वो करना है। आप जैसे आपके नेबरहुड में भी आप कुछ अपने लोगों को इकट्ठा करके लोगों के आसपास जा सकते हैं कि भाई पानी का बहुत ज्यादा किल्लत हो रही है, तो आप जो है पानी कम इस्तेमाल कीजिए, बेवजह पानी को मत फेंकिए। तो ये भी दिस इज आल्सो फॉर्म ऑफ, दिस इज अ वेरी पावरफुल वे ऑफ वॉलंटियरिंग कि आप वाटर कंजर्वेशन में कैसे हेल्प कर सकते हैं। So I want to share an example. Hello. Yes, please. जी सर, बोलिए सर। मतलब ये सवाल जो पूछा गया कि हम कैसे पहचाने कि हमें कहाँ वॉलंटियर करना है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। वैसे जनरल जब हमें भूख लगती है तो हमारा हाथ नहीं दिखता कि हमें कैसे करना है, वो खाना उठाता है, खा लेता है यदि अवेलेबल है तो। कोविड-19 के दौरान एक एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल्स, मुझे बहुत स्टोरीज सुनने को मिली और जहाँ पे बहुत पॉजिटिव स्टोरीज है, उसमें से एक शेयर करता हूँ मैं आपके साथ। उत्तराखंड में जो रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट है, और कल ऐसा अनाउंस भी हुआ है कि रुद्रप्रयाग जो डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड का, वो कोविड फ्री हो गया है। मतलब पहला डिस्ट्रिक्ट है उत्तरांचल का जो कोविड फ्री हुआ है। वहां पर जो केदारनाथ जी हैं, मतलब जो भगवान केदारनाथ का मंदिर है, उस रास्ते में एक गांव आता है। वहां जब क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया तो बहुत सारे ऐसे लोग आए जो बाहर से थे लेकिन उत्तराखंड के थे, वहां के रहने वाले थे लेकिन वो बाहर थे। उन लोग क्वारंटाइन में या जो मैदानी इलाका है वहां से सामान जाता है, उस दौरान सब कुछ जाना बंद हो गया था, खास करके सब्जियां। हुआ ये कि वहां पे जब सब्जी की शॉर्टेज हुई तो स्थानीय लोगों ने दो काम किया। एक, जो क्वारंटाइन हुए लोग थे उनकी स्किल्स का यूज किया। दूसरा, एक वहाँ सज्जन है, उनका नाम है राजेंद्र नेगी, वो हमसे बहुत जुड़े हुए हैं। उन्होंने उन लोगों को सुबह सुबह जाकर के योग सिखाना शुरू किया। तो एक कनेक्शन बना उन लोगों का और क्वारंटाइन लोगों के साथ जो उनको जानते नहीं है लेकिन बाहर से आए हैं। और उन लोगों की स्किल यूज करके उन्होंने क्या किया, अपने इलाके के लोगों को, अपने गांव के या अपने जिले के लोगों को सब्जियों की कमी ना हो उस दौरान में, 3-4 महीने हो गए आज, उन्होंने बहुत बड़ी जमीन किराए पर ली और वहां पे ऑर्गेनिक खेती करना शुरू किया। आज वो समय है, वो जनवरी की बात है, जनवरी फरवरी की, उसके बाद से लेके आज तक, सॉरी मार्च अप्रैल की बात है, और अब तक उन्होंने वहां पे खेती करना शुरू किया और ऑर्गेनिक फार्मिंग का रिजल्ट अब देखने को मिल रहा है। तो कभी हमको जरूरत नहीं पड़ती कि हम वॉलंटरी काम कहाँ से शुरू करें। आपको लगता है कि मेरे यहाँ पे ये दिक्कत दिखाई दे रही है, आप उसमें जुट जाइए, आपको टीम आपकी बनती चली जाएगी। कल हम टीम बिल्डिंग की बात करेंगे। टीम जो बनाते हैं आप, वो हमेशा रहती नहीं है, ध्यान रखिएगा। आपको खुद ही इनिशिएटिव लेने होते हैं। सर एक और सवाल है जी कि क्या बुनियादी शिक्षा भी इस फील्ड में कामयाब है? मतलब जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, क्या वो कहीं आपको लगता है कि वो वॉलंटियरिज्म को प्रमोट करता है? या जो हमारा जो बुनियादी शिक्षा है, जो बेसिक एजुकेशन गांधी जी का, तो वो तो टोटली बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्टिव वर्क एंड टोटली बेस्ड ऑन स्किल बिल्डिंग, टोटली बेस्ड ऑन लर्निंग आउटसाइड द स्कूल करिकुलम और अपना जो करिकुलम के बाहर। तो जो गांधी जी का बुनियादी शिक्षा है, इट इज टोटली फोकस्ड ऑन द होल आइडिया ऑफ सर्विस एंड वो। और आज के शिक्षा में जो है, डेफिनेटली ऑफ कोर्स देयर आर चैलेंजेस, बट देयर आर डिफरेंट स्कोप्स एंड वेज, जिसमें कि देखिए वॉलंटियरिंग ऐसा कोई वो नहीं है, ब्रैकेट स्ट्रेट जैकेटेड काइंड ऑफ अ थिंग कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। जब तक हम एज अ ह्यूमन बीइंग, मैंने आपको कनुप्रिया का एग्जांपल दिया, इन स्पाइट ऑफ सो मच ऑफ एग्जाम दिस एंड दैट, अपना टाइम कैसे निकाल के काम किया, तो दैट इज इम्पोर्टेंट। तो बेसिकली हमारा एजुकेशन सिस्टम में भी वो इनबिल्ट अपैरेटस है जिससे कि हम
काम कर सकते हैं अगर हमको विल पावर हो, अगर हम चाहते हैं कि हम वॉलंटियरिंग करें तभी हो सकता है, अगर हम नहीं चाहते तो जितना भी अच्छा व्यवस्था हो तभी भी कुछ नहीं हो सकता है। Okay, sir. So last one or two questions we'll take because the time is also running out. Yeah. A similar question which is related to this is how do the incentives Sorry. Hello. Sir, am I audible to you? Yes. हाँ, या अभी ऑडिबल है। जी sir, this is the question which has been asked by Dr. Varuna, that do incentives or small stipends can increase the commitment. Okay, commitment to volunteering. Yes, I can hear. Am I audible? हाँ, आप Hello? ऑडिबल हैं वेदा जी। ओके, मेरे को लगता है दीपाली ने पूछा कि आर स्मॉल इंसेंटिव्स लाइक हाँ, स्टाइपेंड वगैरह या सर्टिफिकेट, डेफिनेटली अगर देखा जाए तो वो छोटे छोटे चीजें हर चीज में जो नो व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ रिवार्ड, इट मे नॉट बी बिग, बट छोटा सा कुछ आपने उसको मोमेंटो भी दे दिया तो उसको बहुत खुश होता है कि भाई, या होती है कि भाई उसको कुछ मिला, तो इन दैट वे ऑफ कोर्स वो काम करेंगे। मगर जो हमने कहा कि बेसिकली हमको वॉलंटियरिंग इज आउट ऑफ फ्री विल, एंड हमको ये देखना चाहिए कि we should not expect things in return. That is the purest form of volunteering. मगर आज के context में when a student is volunteering, definitely he or she will like to expect a certificate or something like that, an acknowledgement letter, some kind of appreciation letter or something, जिससे कि उसको और boost up होता है। तो छोटे छोटे चीज से वो बूस्ट अप होने से और ज्यादा हो सकता है बेहतर काम करे। जी, so thank you so much, sir. Can we take one more question, one last question? Yes, please. Sure. दीपाली जी। जी सर। उस जो अभी पहले क्वेश्चन पूछा उसमें एक चीज मुझे कहनी है। जी सर, बताइए सर। हाँ, बल्कि एक स्टोरी है छोटी सी, मैं शेयर करता हूँ। मतलब वॉलंटियरिज्म स्किल यदि बढ़ानी है और वॉलंटियरिज्म को प्रमोट करना है तो हम इस स्टोरी से समझ सकते हैं। एक बच्चा था, उसके पिताजी रोज उसे 1 रुपया देते थे, बोलते थे जाओ कुएं में डालाओ। वो बेटा था और 1 रुपया लेता था, उसको उस रुपए को कुएं में डालाता था रोज। जब वो बड़ा हुआ तो अपना पैसा कमाने लगा। पिताजी ने कहा जाओ उस 1 रुपए को, उसको अपने पैसे में से इस 1 रुपए को उस कुएं में डाला। वो नहीं गया डालने के लिए। मुझे लगता है जब तक हम रिवॉर्ड देंगे तो उसमें स्किल तो हम या उसको हम एंगेज तो रख सकते हैं वॉलंटियरिज्म में, लेकिन उसको अपने आप उसके अंदर से ये आना चाहिए कि मुझे इस काम के लिए वॉलंटरी कुछ करना है। जब तक अपना नहीं होगा, जब तक उसमें इंटरेस्ट नहीं होगा, जब तक उसकी जिम्मेदारी नहीं समझेगा वो, तब तक उसके अंदर हम वॉलंटरी स्किल डाल नहीं सकते। तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है वॉलंटियरिज्म के लिए। जी सर, एक लास्ट क्वेश्चन और है कि ये कविता सोनी जी से है।